Hello, ma'am. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Shall we start? Yes. Okay. Which topic should we start with? I If you think, have any, yes. uh, could we start with, I think we continue with cash and accounting ratio itself. Okay. Also, see, I had told you that there was one question in 2024-25 shares question, right? Should we do that now? Sorry? Should we do that now? Yes, I wanted to guide you about that also little bit, right? Not little bit means entire question, right? Because how is it different from the previous ones? Because there they have given this thing also. What we call it ratio, right? Yes, ma'am. Wait, I'm resharing the board. Yeah. Yes, Also, is the board. Sorry, yes. ma'am, how many classes have we covered till now? My mom is asking. Sessions. I think today is the last one. I don't know, but I'm just guessing. Oh, no, how many classes have we covered? We have covered. Yes. Means out of 12, it would be the last one, one and a half, right? Today is the Yeah. last. Yes, I think so. I'll recheck. Okay, then I'll tell you. Okay. It's okay. You need not worry. If you will be having any doubt, you can text me in the group, right? Okay, ma'am. Nothing to worry, right? Actually, I had in the morning, I had work. Okay, I had some class. Okay, that's why. Yes, see, Space Ventures Limited was registered. This is question number 26. I had already shared it in the group. Again, I'm resharing so that you can look at the question, right? Okay, ma'am. Wait, I am resharing it because they had used this thing. Where is? Yes, you can go through this question. Means this is the topic that has covered. Means these such type of questions are generally asked, right? Where ratio is there, co-feature is there, pro rata table is there. Also, how they confuse us, they have given us this ratio thing also, right? So we need not get confused. First, we will be making pro rata table. Okay, quickly read that question, then we will discuss it. Okay. Space Ventures Limited was registered with an authorized capital of 20,000 rupees, 20 lakh rupees, divided into 2 lakh shares of 10 each. The company offered 80,000 shares for the public subscription payable at 4 rupees on application and 7 rupees on allotment, including 1 rupees premium. Public had applied for 1 lakh 10,000 shares and pro rata allotment was made in the ratio 5:4. Remaining applications were rejected. Mukta holding 6,000 shares failed to allot allotment money. Her shares were being forfeited and later reissued 4,000 shares at a discount of 2 rupees per share. Past necessary entries in the book of Space Venture Limited. Yes. See, now they are saying, is the board visible? Yes, ma'am. What are they saying here? So far, we have whatever pro rata we have done there, they had not given us this share ratio, 5:4, right? See, in this question, they have given us ratio also, that is 5:4, right? So, how we can do that? First, we will be making a pro rata table. Pro rata table, right? Means here we need to check on our own. They said divided into 20. Invited, registered with an authorized capital of 2 lakh. 2 lakh shares, 20,000. No, sorry. What is the authorized capital? Rupees 20 lakh. And how many shares are there? 2 lakh shares. The company offered 80,000 shares for public subscription. Now, when they use the word offer for public subscription, means they are selling. Yes, Right? ma'am. How much shares they are selling? 80,000 shares. Yes. Then it says public had applied for 1 lakh 10,000 shares. And when we use the word applied, that means there is a demand. Demand of how many shares? 1 lakh 10,000 shares. Understood? Yes, ma'am. Public.
Means we as a company wanted to sell 80,000 shares, but public is demanding 1,10,000 shares, right? And pro rata allotment was made in the ratio 5:4. Okay, pro rata is made. See, we are having only 80,000 shares to sell, right? But there is a demand. Demand is more than supply. You can say like that, right? Demand is more than supply, right? Demand is more. How much is that? 1,10,000 shares. So how we are going to allot them shares? 5 is to in ratio of 5 is to 4. So let's make a pro rata table. First is shares applied. Right. This I had once shared pic of this, but I wanted to share this one because sometimes students get confused in ratio, right? Yes, ma'am. This way you will be able to recall all the entries also of ratio and forfeiture. Shares applied, shares allotted. Then we will start with that one. Application money received, right? Then we have application money due. Also excess money. Excess money. Allotment, first call, second call, bank, right? Then we have allotment, first call, second call, and bank. Bank we call refund also, right? समझ आ गई ये? हम जो भी एप्लीकेशन के बाद एक्सेस मनी आती है उसको किस किस में एडजस्ट कर सकते हैं? अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, एंड सपोज इफ वी आर नॉट मेकिंग एनी अलॉटमेंट वी विल रिफंड दैट स्पेसिफिक मनी, राइट? तो उस रिफंड को हम क्या बोलते हैं? बैंक या फिर रिफंड. बट क्योंकि जर्नल एंट्रीज वी जनरली डू विद इन द नेम ऑफ बैंक, सो लाइक दैट. ओके. Yes, ma'am. Now see, I'm making this thing. Shares applied, shares allotted, application money received, application money due, excess. And this excess money, in this excess column, we never write the total amount, right? Means in total, we don't go with the total amount of excess column. Now see what is given. They said we have to allot according to 5 is to 4. Okay. So first, every time whenever we make any pro rata table, first we always write total amount. सबसे पहले हमें क्या लिखना है? टोटल का अमाउंट, राइट? टोटल का अमाउंट तुम्हें पता ही है. शेयर्स अप्लाइड मींस एंड शेयर्स अलॉटेड. अप्लाइड मींस कितने की डिमांड थी, राइट? 1,10,000 शेयर्स की. आ रही है बात समझ? Yes, ma'am. 1,000 शेयर्स की डिमांड थी और हमने हमारे पास शेयर्स अलॉटेड. हम कितने दे सकते हैं? 80,000 शेयर्स ओनली, राइट? सेल कितने कर सकते हैं? 80,000 शेयर्स. और डिमांड कितने की है? 1,10,000 शेयर्स की. बट ये बोल रहा है हमें 5:4 की रेशियो में डिवाइड करना है, प्रोराटा देना है. तो कैसे चेक करेंगे? 5:4 का क्या मतलब हो सकता है कि जब हमारे पास 5:4, this is the demand for shares, right? We can call it demand and here we can call it selling. Understood? So when we are ready, see, have you understood how I wrote this ratio? 5:4. जो ज्यादा वाला है 5 हो गई डिमांड, कम वाला हो गया सेलिंग. यही हुआ ना? 1,10,000 वाला डिमांड था, 80,000 वॉज सेल. तो सेम यहाँ रेशियो में चल रहा है. 5 वाला डिमांड था और 4 वाला सेल है, राइट? तो अब कैसे चलाएंगे? जब हमारी सेल रेशियो में 4 है तो अमाउंट में कितनी है? 80,000. नंबर ऑफ शेयर्स में, सॉरी, दीज आर नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? फर्स्ट टू कॉलम्स आर ऑलवेज मेंट फॉर शेयर्स, राइट? तो जब तुम्हारे रेशियो में 4 सेलिंग है, मीन्स तुम 4 यूनिट सेल करना चाहते हो. तो अगर हम शेयर्स की सेंस में उसे देखें तो कितने शेयर्स सेल करना चाहते हो? 80,000, राइट? अगर सपोज तुम 1 यूनिट सेल करना चाहते हो तो कितने शेयर सेल करोगे एक्चुअल में? 80,000 ओवर 4. और अगर तुम्हारी जो दिस थिंग डिमांड 5 यूनिट्स की है, राइट? तो एक्चुअल में कितने शेयर्स तुम सेल आउट करोगे? 1,00,000. Yes. अभी अंडरस्टूड कैसे चेक करते हैं? देखो मैंने लिख दिया था यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए. डिमांड इतनी थी और सेल थी इतनी, राइट? सेम चीज हमने रेशो को करके देखी. डिमांड इतनी थी, सेलिंग ज्यादा, सेलिंग कम है और डिमांड ज्यादा है. मीन्स डिमांड इज एक्सीडिंग सप्लाई, राइट? तो रेशो की सेंस में भी ऐसे देख लो. अगर मैं सेलिंग की रेशो उठाती हूँ तो सेलिंग के शेयर्स कितने? 80,000. 4 रेशियो पे शेयर्स कितने सेल आउट कर रहे हैं? 80,000.
1 पे 80,000 ओवर 4, तो 5 पे कितने होंगे? 80,000 ओवर 4 इंटू 5। तो मीन्स अगर 5 यूनिट्स की डिमांड है तो हम कितने शेयर सेल आउट करेंगे? 1 लाख शेयर। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. तो यहाँ पे तुम कितने लिखोगे? 1 लाख। इट मीन्स ये बोल रहे हैं ना 5:4। 5:4 का मतलब क्या है कि अगर डिमांड 5 की है तो तुम कितने दोगे? 4 ओनली। अंडरस्टूड? आ Yes, रही है ma'am. चीज समझ? वेट, yes। अगर डिमांड तुम्हारे पास 5 की है तो तुम कितने सेल आउट करोगे? 4। तो देख लो, अगर 5 की डिमांड है, ठीक है, तुम सिर्फ 4 दे रहे हो यूनिट्स। सपोज 5 यूनिट्स की डिमांड है और तुम 4 यूनिट्स दे रहे हो उसकी, तो ऐसे शेयर्स की सेंस में समझ लो, अगर 1 लाख की डिमांड है तो कितने दोगे? 80,000। 1 लाख वालों को कितना प्रोराटा दोगे? 80,000। अंडरस्टूड? ये 1 लाख कैसे आया? Yes, हमने ma'am. यूनिटरी मेथड से चेक कर लिया कि 5 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ। अगर 4 यूनिट्स का मतलब 80,000 शेयर्स है, तो 5 यूनिट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? 1 लाख शेयर्स, राइट? अंडरस्टूड? तो अगर ये बोल रहा है अगर 5 की डिमांड है तो तुम कितनी यूनिट सेल कर सकते हो? 4। या तुम कितनी यूनिट्स विलिंग हो सेल करने में? 4। सो 1 लाख पे तुम कितने शेयर्स दोगे? 1 लाख की अगर डिमांड है शेयर्स की तो तुम कितने दोगे? 80,000, राइट? नो Yes. सी, बट टोटल में तो टोटल डिमांड तो हमारी कितने की थी? 1,10,000 की, राइट? हैव यू अंडरस्टूड दिस रेशियो? नो, इजी था ना? ma'am. है ना? तो अगर तुम्हारी टोटल डिमांड 1,10,000 की है तो अभी भी तो 10,000 हमारे पास बचे हुए हैं डिमांड के। बट क्योंकि हमारे पास अलॉट करने के लिए, बेचने के लिए सिर्फ 80,000 शेयर थे तो हमने दे दिए, तो बाकियों को 10,000 वालों को हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट, राइट? अब एप्लीकेशन का रेट और ये सब लिख लेते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन का रेट है @4। @4। एक्सेस मनी तो हमको है नहीं। अलॉटमेंट मनी कितना है? 7 रुपए, राइट? अलॉटमेंट का रेट, आई एम चेंजिंग द रेट ओवर हियर। अलॉटमेंट का रेट 7 रुपए। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का हमको पता नहीं है। और ये क्वेश्चन में चेक भी कर लेते हैं। देखो सारा हमें दे रखा है। इसमें ना रेट भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये बोल रहा था 4 एप्लीकेशन पे, 7 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम प्रोराटा बनाते हैं ना, अगर मैंने ये 7 रुपए लिखे है ना, तो इट मीन्स उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रोराटा हमेशा इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है, ठीक है? तो अगर मैं बोल रही हूँ अलॉटमेंट का रेट 7 रुपए चल रहा है, तो उसमें से एक्चुअल अलॉटमेंट का रेट कितना है? 6 रुपए। और उसमें से 1 रुपीज क्या है? प्रीमियम। तो हमें जब भी हम प्रोराटा टेबल में रेट लिखेंगे अलॉटमेंट का, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ही लिखना, हमें ऐसे नहीं लिखना 7 - 1 बच्चा कितना? 6, तो 6 अलॉटमेंट का रेट हो गया। वी ऑलवेज हैव टू राइट अमाउंट विद प्रीमियम। ओके, तभी देखो मैंने अलॉटमेंट के ऊपर 7 रुपए लिखा। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7, 8, 9, 10, 11 पूरे पूरे हो गए। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि पूरे 11 रुपए यहाँ पे कवर हो रहे हैं, राइट? फेस वैल्यू हमारी 10 रुपए थी ना, ऐसे भी चेक कर सकते हो तुम। फेस वैल्यू मीन ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 10 रुपए, है ना? 10 रुपीज। और प्रीमियम बोल रहा है ₹1 का, तो टोटल कितना हुआ? 11। और तुम करके देख लो, एप्लीकेशन पे इन्होंने दे रखा 4 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना दे रखा? 7। तो मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में सारा रेट कवर हो गया। गॉट इट? Yes, ma'am. देखो 10 रुपीज तुम्हारी फेस वैल्यू थी, 1 रुपी तुम्हारा प्रॉफिट था, तो 11 रुपए तुम्हारी मार्केट वैल्यू थी। अब देखो ये मार्केट वैल्यू कवर हो रही है, यस। 4 रुपए तुमने लिए थे एप्लीकेशन पे और 7 रुपए तुमने लिए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम। आई होप ये तुम्हें समझ आ गया है ना? अब देखो अमाउंट्स कैसे करते हैं तुम्हें पता ही है। फर्स्ट कॉलम को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ, मीन्स ऑड को ऑड के साथ। इसमें ऑड कॉलम्स कौन से? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है ना। तो फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? फर्स्ट कॉलम को हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये देखो फर्स्ट कॉलम गया थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने को, और सेकंड कॉलम होगा फोर्थ वाले के साथ मल्टीप्लाई, राइट? Yes, ma'am. इस बहाने तुम्हें ये पता भी चलता रहेगा। अब देखो इसमें ना अमाउंट्स करते रहना। 1 लाख इंटू 4 कितना हो जाएगा? ऐसे ही करते हैं ना। ये तो शेयर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले यहाँ पे अपनी नॉलेज के लिए ऐसे रुपीज रुपीज लिख लेना। ठीक है। रुपीज, 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 रुपीज और रुपीज, ठीक है? तो पहले 2 कॉलम्स तो शेयर्स के ना। 1 लाख इंटू 4 हाउ मच इज देयर? 4 लाख, राइट? फिर 10 इंटू 4 हाउ मच इज देयर? 40,000। देन 8 इंटू 4 कितना है? 32।
then rejected means 0 into 4 means 0. Excess money देखो, एप्लीकेशन मनी ड्यू कितनी थी 3,20,000 और आया कितना 4 लाख, मतलब ड्यू का मतलब तुमको एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलना चाहिए था 3,20,000, फिर तुम्हें एक्चुअल में मिला कितना 4 लाख, तो जो एक्स्ट्रा मिला वो तुम कहाँ कितना मिला 80,000। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है ये? Yes, ma'am. तुमने बेचे तो 80,000 शेयर है ना एक्चुअल में, डिमांड भले ही 1 लाख की थी बट तुम कितने बेच रहे हो 80,000 शेयर्स, तो 80,000 पे तो तुमको कितने पैसे मिलने चाहिए थे 3,20,000, बट एक्चुअल में मिले कितने 4 लाख। मतलब जो पब्लिक है ना वो विलिंग है बहुत सारे शेयर्स खरीदने को, कम से कम 1 लाख, तो पब्लिक ने पहले ही तुमको पैसे दे दिए 4 लाख, तो अब जो एक्स्ट्रा मनी आई वो तुम रिटर्न नहीं करोगे, वो तुम ट्राई करोगे कि ओके हम दे देंगे तुमको ये शेयर्स, तो वो तुम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, तो एक्स्ट्रा मनी कितनी आ गई 80,000, तो वो तुम अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, जो ये अलॉटमेंट का रेट है वो कितना बैठ रहा है, 80,000 शेयर्स दे रहे हो ना, हमेशा उन्हीं शेयर्स पे रेट चेक करना जो हम एक्चुअल में दे रहे हैं, तो 80 into 7 कितना बैठा 8 7 56, राइट? Yes, ma'am. मतलब इस कॉलम में तुम 5,60,000 एडजस्ट कर सकते हो, बट तुम्हें तो सिर्फ कितने एडजस्ट करने हैं 80,000। अंडरस्टूड? तो हम कर देंगे यहाँ पे 80,000 और दैट। और क्योंकि देखो इस नीचे वाले जो 10,000 वाले उसको तो हम कुछ दे ही नहीं रहे, तो उसका सारा पैसा हम वापस कर देंगे, तो रिफंड कितना करेंगे, 10,000 की शेयर्स की डिमांड हुई थी, 40,000 रुपए आ गए थे उन शेयर्स पे, क्योंकि हम उनको अलॉट ही नहीं कर रहे, तो हम 40,000 के 40,000 वापस, ठीक है। और यहाँ देखो कुछ भी नहीं, फर्स्ट में कुछ नहीं, सेकंड में कुछ नहीं, रिफंड में कुछ नहीं, क्योंकि हमने वो सारे पैसे एडजस्ट कर दिए, तो एप्लीकेशन मनी के टोटल में हमने लिख दिया 4,40,000, एप्लीकेशन मनी ड्यू के उसमें हमने लिख दिया 3,20,000, एक्सेस मनी यहाँ एक्सेस के कॉलम में हम कुछ नहीं लिखते, अलॉटमेंट में हमने लिख दिया 80,000। अंडरस्टूड? और यहाँ 40,000। समझा कि कैसे एडजस्ट हुआ, देखो इस 4,40,000 को यहाँ से पैसे शुरू हो रहे थे ना 4,40,000 पे, आई एम पुटिंग ग्रीन टिक हेयर, 4,40,000 तुम्हें टोटल मिला था, तो तुमने उसको कैसे कैसे लोगों को शेयर्स दे दिए, पहले तुमने 3,20,000 के शेयर्स दिए, फिर तुमने 80,000 के शेयर्स दिए, और जो फिर भी तुम्हारे पास पैसे बचे तो वो सारे रिफंड कर दिए तुमने, मतलब 10,000। एक्चुअल अक्सर क्वेश्चन बच्चों का ये होता है, ये 40,000 किसको रिटर्न कर रहे हैं, या ये बैंक का पैसा जो टोटल है वो किसको, जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया, देखो 10,000 शेयर्स की डिमांड थी, उन शेयर होल्डर्स वालों को हमने कुछ नहीं दिया, तो उनके जितने पैसे आए उनके आए थे 40,000 एक्स्ट्रा, तो सारा रिटर्न कर दिया। गॉट इट? Now quickly let's rewind this journal entry, then we will start with that. Okay, now क्योंकि इसमें ना रेशियो और फोर फीचर भी रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। अब सबसे पहले ये बोल रहा था जर्नल एंट्री करते हैं, तुम्हें पता ही है एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री की जाती है जब पैसा इकट्ठा किया जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट? और बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना। अब देखो तुम तो अपनी तरफ से तो 1 लाख वाले शेयर्स को प्रोराटा दे रहे हो ना, बट एक्चुअल में तुम्हें एक्स्ट्रा मनी कितने पे आई थी 1,10,000 पे, राइट? 1,10,000 और एप्लीकेशन का रेट कितना था 4, तो मीन्स तुम्हारे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए 4,40,000, और इधर भी 4,40,000, राइट? फिर तुमने उनको कैसे प्रोराटा एडजस्टमेंट करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब देखो ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन करी तुमने, यहाँ पे देख लेना, ये वाला अमाउंट हम सीधा कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे था ना शेयर एप्लीकेशन 4,40,000, अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हें शेयर्स अलॉट करने हैं, सब तभी हम एप्लीकेशन पे हमेशा पहले बैंक की एंट्री करते हैं ये चेक करने के लिए कि कितना पैसा हमको रिसीव हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अलॉटमेंट करते हैं, राइट? तो तुम्हें 4,40,000 रिसीव हुआ है, अभी हम कहाँ से चेक करेंगे कि कितने कितने में उसको डिवाइड करना है, अपने प्रोराटा से हम सीधा कॉपी कर लेंगे, राइट? देखो 4,40,000 था ना ये वाला, इसको हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं, पहले एप्लीकेशन पे मैंने कितने के शेयर्स बेच दिए 3,20,000 के, फिर मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे 80,000 के शेयर्स बेच दिए, अब क्योंकि वो पैसा पूरा हो चुका है, राइट, तो एक्स्ट्रा मैंने क्या कर दिया रिफंड। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब शेयर्स बचे ही नहीं बेचने को, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारा अमाउंट मैं वहां से कॉपी कर रही हूँ तुम्हारे प्रोराटा टेबल से। So I'll be writing like this: to share capital account, to share allotment
अकाउंट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो शेयर कैपिटल कितना है? 3,20,000। देन शेयर अलॉटमेंट कितना है? 80,000। और जो बचा वो क्या हो गया? 40,000। अंडरस्टूड? समझ आ गई ये? Fine. समझ आ रहा है ये? Yes, ma'am. जो सेकंड एंट्री होती है ना, वो हमेशा हम कहाँ से कॉपी करते हैं? प्रोराटा के टोटल से। 4,40,000 तुम्हारे पास इकट्ठे हुए थे, वो तुमने बांट दिए। पहले एप्लीकेशन के टाइम पे तुमने शेयर्स कितने के बेचे? 3,20,000 के। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे तुमने 80,000 के शेयर्स बेचे। अब तो बेचने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1 लाख शेयर्स को ही तुम प्रोराटा कर रहे थे, तो पूरे पैसे हो गए रिकवर, है ना। मतलब जितना पैसे तुम्हारे पास आए थे उतने के तुमने शेयर्स दे दिए। अब 40,000 तो रिफंड करने ही पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 4,40,000 तुम्हारे पास आ रहे हैं। और देखो, तुम सिर्फ अलॉटमेंट कितने वालों को कर रहे हो? 4 लाख वालों को, है ना। जब तुम 1 लाख वालों को प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हो, तो मीन्स तुम कितने के शेयर्स बेच रहे हो? तुम कितनी कैपिटल रेज कर रहे हो? 4 लाख। वो तुमने सेटिस्फाई कर दी। यहाँ पे देखो, 3,20,000 प्लस 80,000। तो एक्स्ट्रा जो 10,000 शेयर्स पे 40,000 है, वो हमने रिफंड कर दिए टू बैंक अकाउंट, राइट। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस मनी रिफंडेड, बट यू विल बी राइटिंग बीइंग एप्लीकेशन मनी। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें रेशू का भी एक बार तुम्हें रिवाइज हो जाएगा कि कैसे करना होता है, फोर फीचर और रेशू कैसे करना है ना। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड एंड सरप्लस मनी रिफंडेड। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. समझ आ गई? अब जल्दी से थर्ड एंट्री कर लेते हैं। इसमें भी तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह की प्रोराटा एंट्री आएगी। अब आती है, तुम्हें पता ही है, हर चीज की दो दो एंट्रीज होती है। एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो, फर्स्ट कॉल की दो एंड सेकंड कॉल की दो एंट्रीज। तो एप्लीकेशन की दो एंट्रीज तो हमने कर ली, पहली वाली रिसिप्ट फिर ड्यू। बट बाकी सबकी कैसी चलती है? पहले ड्यू फिर रिसिप्ट। सिर्फ एक एप्लीकेशन ऐसा होता है जिसकी रिसिप्ट की एंट्री पहले चलती है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हाउ मच शेयर्स वी हैव टू अलॉट, राइट। तो देखो अब मैं कैसे कर रही हूँ। शेयर अलॉटमेंट, ड्यू मनी चेक करेंगे ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम चेक करेंगे कि अलॉटमेंट में हम कितना पैसा ले सकते हैं, या ये चेक कर लो कि अलॉटमेंट के टाइम पे हम कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे चलेगा, अब ये चीज ध्यान देने वाली है। एप्लीकेशन पे तो हम हमेशा वो देखते हैं जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है, जो हमारी एक्चुअल डिमांड होती है। पब्लिक ने कितने की डिमांड की थी? 1,10,000 शेयर्स की, ठीक है। इसमें ये जर्नल एंट्री में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे तो तुमने डिमांड वाले शेयर्स लिखते हो हमेशा, बट जब हम अलॉटमेंट करते हैं तो हमारे पास कितने एक्चुअल में अवेलेबल है, हम सिर्फ वो वाले शेयर्स लिखते हैं। हम कितने बेचना चाह रहे हैं? सिर्फ 80,000 शेयर्स, दैट टू एट द रेट ऑफ 7 रुपीज। तो कितना बैठ गया? 5,60,000, राइट। और देखो, शेयर कैपिटल पे हमेशा एक्चुअल रेट बैठेगा, हमें पता नहीं एक्चुअल कितना है सपोज। तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट पता था, कितना था वो? 80,000। 80,000 पे एक, राइट। 80,000 पे 1 रुपए, कितना आया? 80,000। तो 5,60,000 में से जब 80,000 चले गए तो कितने बचे? 5,60,000 में से 80,000 लेस कर दो, 48 lakhs। अलॉटमेंट ड्यू। ना इस पे ये देखना कि तुम्हें एक्चुअल में अलॉटमेंट में तुमने क्या चेक किया कि तुमको कितने पैसे आने चाहिए? 5,60,000। आ रही है बात समझ? Yes, ma'am. 80,000 थे या 8,000 थे? वेट। 80,000 एट द रेट ऑफ 5। ये 48 तो हो ही नहीं सकते, 5,60,000 है ना।
wait, 5,60,000 minus 80,000. By mistake, I have written 48 lakh. 1, 2, 3, 4 minus 80,000. 4,80,000. 4,80,000. इससे क्या पता चल रहा है कि तुमको एक्चुअल में कितने आने चाहिए? 5,60,000. बट ये बोल रहा है कि एक शेयर होल्डर जो था उसने हमें पैसे नहीं दिए। और ये देखो कौन से पैसे नहीं दिए। इसने बोला कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 6,000 शेयर्स थे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, राइट? वो कह रहा है कि एक शेयर होल्डर, ये नहीं कि उसने सारा पैसा नहीं दिया। सपोज करो अगर उसने तुम्हें 10 रुपए देने थे तो उसने 10 रुपए में से 4 रुपए दे दिए, 6 रुपए नहीं दिए। आ रही है बात समझ? फिर हम बोलते हैं ना कि कॉज एरियर्स में है। तो कॉज एरियर्स का मतलब ये नहीं होता कि फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो उसने पूरे 10 रुपए नहीं दिए। वो डिपेंड करता है कि ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहा था उसने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, तो मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया था, राइट? तो 4 रुपए तो आ गए थे तुम्हारे पास। अब अलॉटमेंट का एक्चुअल रेट कितना है वो हम चेक करेंगे, राइट? आ रही है बात समझ कैसे कर लूं मैं, Yes, ma'am. राइट? तो देखो शेयर अलॉटमेंट है ना तुम्हारे पास, बैंक का बैलेंस हम बाद में चेक करेंगे। तुम्हें पता है कि कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं? 6,000 शेयर्स होल्डर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास हमारे 6,000 शेयर्स थे। उसने अलॉटमेंट का रेट नहीं दिया और हमें पता है अलॉटमेंट इन्होंने कैसे दे रखी है, 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इफ आई डिडक्ट -1, हाउ मच वी विल गेट? 6 रुपीज। अंडरस्टूड? तो ये अलॉटमेंट कैसे बैठेगी? 6 रुपए पे, क्योंकि जो हमें वहां पे अलॉटमेंट दे रखी थी वो कितनी दे रखी है? 7 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, राइट? तो हमको यहाँ पे एंट्री करते हुए तो इंक्लूडिंग प्रीमियम करना ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये बोला सिंपली कि उस बंदे ने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, जो कि कितना है एक्चुअल में? 6 रुपए। 7 - 1 दैट इज 6। यहाँ लिख देती हूँ मैं 7 - 1। फिर प्रीमियम हटा के देखेंगे हम, क्योंकि जो पैसा ही नहीं दे रहा वो प्रीमियम का मतलब तो ये हुआ ना कि हम उससे फायदा उठा रहे हैं 1 रुपए का। तो जो पैसे ही नहीं दे रहा उससे फायदा क्या उठा लोगे, जो तुम्हारे एक्चुअल पैसे ही नहीं दे रहा? आ रही है बात समझ? सपोज करो तुम्हें किसी पार्टी से 7 रुपए लेने थे। मैं तो बिल्कुल ना ऐसे छोटा अमाउंट करके डिस्कस करते हैं, राइट? सपोज करो हमें किसी से 7 रुपीज देने थे, लेने थे। बट अगर वो पर्सन हमें 6 रुपीज ही नहीं दे रहा तो वो एक्स्ट्रा 1 रुपीज लेके हम क्या करेंगे? जब एक्स्ट्रा कहाँ से देगा जब वो फेस वैल्यू ही नहीं दे रहा, राइट? तो इसलिए यहाँ पे हम हमेशा एक्चुअल फेस वैल्यू पे चलते हैं। तो अलॉटमेंट का एक्चुअल रेट कितना है? 6 रुपए। अंडरस्टूड? And to share allotment, see how much shares you were allotting? 8,000 at the rate of 6, right? तुम अपनी तरफ से कितने शेयर्स अलॉट कर रहे थे? 8,06,000, 80,000 it should be. By mistake I have written 8,000. 80,000 at the rate of 6. It should be 4,80,000. Got that? So if you deduct 4,80,000, 6 are 36,000. If you deduct 48, 1, 2, 3, 4 minus 36,000, तो कितना बचता है हमारे पास बैंक में? 444,000। मीन्स तुम्हारे पास बैंक में कितना आया? इससे चेक कर लो। आना चाहिए था 4,80,000, बट तुम्हारे पास सिर्फ कितना आया? 4,44,000। गॉट दैट? और Yes. लिखोगे क्या? being allotment money received and unpaid. Being allotment money received and unpaid amount. Unpaid means calls in arrear. Unpaid amount transferred to calls in arrears. Understood? Understood ये? समझ आ गई? Yes, ma'am. नेक्स्ट वी हैव दिस थिंग। ये बोल रहे हैं जो एरियर्स में थे उनको हमने जब्त कर लिया। जब्त मीन्स forfeit. Yes, ma'am. And you know the entry of forfeiture. What entry do we write? And see, these shares were forfeited. These shares were issued at premium. So at the time of forfeiture also you will be writing premium amount, right? पहले तुमने प्रीमियम पे बेचे तो तुम्हें प्रीमियम का पैसा मिला था। अब जब तुम वो शेयर जब्त कर रहे हो मतलब वो प्रीमियम का पैसा तुम्हारा लॉस में चला गया। इसलिए जो प्रीमियम तुमने वहां क्रेडिट लिखा था अब यहाँ पे क्या लिखोगे? डेबिट। अंडरस्टूड? जब तुम्हारे 6 रुपए रिकवर नहीं हो रहे तो वो 1 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से रिकवर होंगे? अंडरस्टूड? तो जो हम प्रीमियम देखो,
प्रीमियम क्या एक तरह की इनकम है, प्रॉफिट है हमें। इनकम नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सॉरी यस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब हमने इशू किया था, हमने प्रीमियम को क्रेडिट किया था, वो हमारे लिए एक बेनिफिट था, इनकम थी, राइट। तो हम उसको कैसे कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। अब जब 6 रुपए नहीं रिकवर हो रहे, टोटल अलॉटमेंट थी 7 रुपए की, जिसमें 1 रुपए तुम्हारा प्रीमियम था। जब 6 रुपए ही कवर नहीं हो रहे उसमें से, तो 1 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से कवर होंगे। तो मीन्स ये प्रीमियम अब हमारे लिए क्या बन गया, लॉस। सो वी हैव डेबिटेड इट, अंडरस्टूड। जब्त करते हुए अब कितने शेयर जब्त कर रहे हैं हम, 6000 एट द रेट ऑफ 10। हमेशा याद रखना, जब्त करते हुए कैपिटल अकाउंट के आगे फेस वैल्यू आती है, क्योंकि हमें पता है एक्चुअल रेट, राइट। और प्रीमियम का रेट भी हमें पता है। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब सपोज करो फोर फीचर अकाउंट। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने 10 के 10 रुपए नहीं दिए, 4 रुपए तो उसने दिए थे, बट हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कितने पैसे हमको रिसीव हुए 6000 शेयर्स पे। तो तुम पहले कॉल्स इन एरियर्स लिख लोगे। मीन्स यहाँ पे इस पे क्या ट्रिक अप्लाई होती है कि जो जो रेट्स तुमको पहले से पता है ना, पहले वो वाले लिख लो। हमें पता था शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। प्रीमियम का रेट कितना है, 1 रुपीज। कॉल्स इन एरियर्स हमें पता है कि उसने 6 रुपए नहीं दिए, अलॉटमेंट का रेट। तो देख लो, ये लिख लो जो जो पहले पता है। 60,000 हमें पता है, 6,000 हमें पता है डेबिट डेबिट, और क्रेडिट कितने हुए थे, 36,000। तो अब क्या करोगे, जो ये डेबिट डेबिट है इनको प्लस कर लो, और उसमें से ये 36,000 माइनस कर दो, तो जो ये बचेगा शेयर फोर फीचर, वो हो जाएगा तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर। अंडरस्टूड, कितना, 30,000। यहाँ पे शेयर फोर फीचर का मतलब होता है कि कितना पैसा एक्चुअल में रिसीव हो गया, और कॉल्स इन एरियर्स कितना नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला होता है जो पैसा आ गया, और ये वाला जो पैसा नहीं आया। अंडरस्टूड। Yes, आ रही है बात समझ। और ये पूरी फोर फीचर की एंट्री है तुम्हारी, फोर फीचर। हमेशा याद रखना, जब भी अगर शेयर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे, तो जब्त करते हुए वो रिवर्स एंट्री देंगे। जो प्रीमियम तुमने वहां क्रेडिट किया था वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जो शेयर कैपिटल तुमने वहां क्रेडिट की थी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेबिट। अंडरस्टैंड। yes, ma'am. क्या लिखोगे, बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। क्योंकि ना मैं इसलिए ये रिवाइज करा रही हूँ, उसमें रेशियो में कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जान के रेशियो दे दी तुम्हें, प्रोराटा और एंट्रीज आती हैं। तो इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये कभी कभार के ये 6 मार्क्स के वेटेज में ही आता है ना, इस तरह का क्वेश्चन। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। फोर फीचर की हमने एंट्रीज करी भी थी, बस यही चलता है। अगर फोर फीचर अलग अलग से दिए, ओके, फर्स्ट कॉल भी कवर नहीं हुई, वो भी एरियर्स में, सेकंड कॉल भी एरियर्स में, तो तुम कॉजल एरियर्स को अलग अलग से भी दिखा सकते हो, लाइक फर्स्ट कॉल एरियर, सेकंड कॉल एरियर, फाइनल कॉल एरियर, लाइक दैट। Second and final call. Generally, we read it as and final call, right? Yes, ma'am. Now I have this thing. अब क्योंकि हमने जब्त कर लिए हैं, बॉन्ड कर लिए हैं, तो अब हम उन्हें बेच देंगे, वो हमारी मर्जी है, बेचे या ना बेचे। सो री इशू की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब देखो, ये बोल रहा था कि हमने पूरे 6,000 के 6,000 नहीं रीशू किया, हमने उसमें से सिर्फ कितने शेयर्स रीशू किए, 4,000 वाले, राइट। मैं एक बार क्वेश्चन का रीइशू पढ़ लेते हैं। ये चीज बस यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कभी कभार क्या केसेस होते हैं, जब भी तुम्हें ज्यादा का तुमने फोरफिट किया बट कम रीइशू कर रहे हो, तो उस पे तुम्हें डिफरेंस डायरेक्ट नहीं देखना है, तुम्हें यूनिटरी मेथड से देखना है, राइट। अब देखो, ये बोल रहा है कि हमने जब रीइशू किया, हमने उसको डिस्काउंट पे किया 2 रुपए के। आ रही है बात समझ। तो Yes, यहाँ पे हम 10 रुपए नहीं लिख सकते। हम कैसे लिखेंगे, 10 रुपए माइनस 2 रुपीज, दैट इज 8 रुपीज। अंडरस्टूड, 10 - 2। तो मतलब जो पैसा आएगा तुम्हारे पास बैंक में, वो 10 रुपए पे नहीं आएगा, वो कितने पे आएगा, 8 पे। तो वो जो बचा कुचा डिस्काउंट है, वो कैसे दिखाएंगे, यहाँ 4,000 इंटू 2। क्योंकि तुम सारे शेयर्स नहीं बेच रहे हो, रीइशू नहीं कर रहे हो, रीसेल नहीं कर रहे हो, सिर्फ 4,000 शेयर्स कर रहे हो, वो भी डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे जो ये वाला शेयर फोर फीचर होता है ना, ये एक्चुअल में डिस्काउंट होता है। अंडरस्टूड। पर हम इसे डिस्काउंट के नाम से क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि जो भी हमको फोर फीचर के टाइम पे गेन होगा ना, वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो हमें शेयर फोर फीचर जितने भी लिखा होता है, उन सबका डिफरेंस देखना होता है, डेबिट माइनस क्रेडिट। इसलिए हम डिस्काउंट को यहाँ पे कैसे दिखाते हैं, शेयर फोर फीचर। बट अपनी नॉलेज के लिए यू कैन राइट इट इन ब्रैकेट। अंडरस्टूड। yes, ma'am. समझ आ रहा है ना कैसे कैसे, 32,000। और तुम्हें ये चीज पता ही है, ये किस चीज की एंट्री है, रीइश्यू की। ये पूरी एंट्री किस चीज की है हमारी, रीइश्यू की। जो प्रीवियस एंट्री करी थी वो सारी किसकी थी, हमारी फोर फीचर की। ये पूरी एंट्री मतलब फोर फीचर है, फिफ्थ एंट्री।
सिक्स्थ एंट्री इज टोटली रीइश्यू एंट्री। रीइश्यू तुम्हें पता ही है क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जनरली हम सिर्फ ये करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, इसलिए हमको ये शेयर फॉर फीचर भी डेबिट करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कितने का तो हमने डिस्काउंट ही दे दिया। तो उस हिसाब से हमारे पास कितने आने चाहिए, 32,000, और आने कितने चाहिए थे, 40,000। कैसे, 4,000 एट द रेट ऑफ 10, आने चाहिए थे 40,000, आए कितने, 32,000। बीइंग शेयर रीइश्यूड, बीइंग शेयर रीइश्यूड। Next, we have to transfer this gain of on share forfeiture to capital reserve. Share forfeited account debit to capital reserve account. राइट। अब देखो, अगर तुमने पूरे 6,000 के 6,000 की होते ना रीइश्यू, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से देखो मैं फोर फीचर हाईलाइट कर रही हूँ इन येलो कलर, शेयर फोर फीचर इन ऑरेंज आई एम हाईलाइटिंग। शेयर फोर फीचर क्रेडिट एट द टाइम ऑफ फोर फीचर, शेयर फोर फीचर डेबिट, इसका डायरेक्ट डिफरेंस कर लेते हैं हम। अंडरस्टूड। डेबिट माइनस क्रेडिट, और जो बचता वो कहाँ चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। बट यहाँ हम डायरेक्ट डिफरेंस नहीं कर सकते, 30-8। क्यों, क्योंकि तुमने वो जब्त तो ज्यादा शेयर्स किए हैं बट रीइश्यू कम किए हैं। अंडरस्टूड, आ रही है ये चीज समझ। Yes, ma'am. जब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना पैसा, तो हम कैसे करते हैं, जो जो फोर फीचर के अमाउंट होते हैं ना, एक फोर फीचर की एंट्री में और जो रीइश्यू की होती है, उन दोनों का डिफरेंस करके देख लेते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट मींस बड़ा अमाउंट माइनस छोटा अमाउंट। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफरेंस करके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि 6,000 ही फोरफिट किए थे, 6,000 ही रीइश्यू किए। यहाँ बोल रहा है 6,000 तो तुमने जब्त किए, बट उसमें से सारे नहीं बेचे, सिर्फ 4,000। तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि 4,000 पे कितने फोर फीचर बैठता है। ठीक है, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, इसको देखो कैसे करोगे। 4,000 पे कितने शेयर्स तुम कर रहे थे, यहां से चेक कर लेते। देखो मैंने जो ऑरेंज हाईलाइट किया है ना, ये यहां से देख लेना, पता चल रहा है ये जो ये शेयर फोर फीचर जब्त किए थे, कितने शेयर्स किए थे, 6,000 शेयर्स, राइट। तो 6,000 पे फोर फीचर कितना बैठा था, 30,000। अंडरस्टूड। ये जो जब्त किए थे तुमने 6,000 शेयर्स किए थे, तो उन 6,000 पे फोर फीचर कितना बैठ रहा है, 30,000। सो हियर यू विल बी अप्लाइंग दिस मेथड यूनिटरी। 6,000 शेयर्स पे मेरा फोर फीचर बैठ रहा है, फोर फीचर का अमाउंट, फोर फीचर अमाउंट 30 रुपीज, 30,000 रुपीज। तो एक शेयर पे कितना बैठेगा, 30,000 ओवर 6। तो हमें 4,000 शेयर्स पे चेक करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। 30,000 6 इंटू 4,000 शेयर्स, 6,000 शेयर्स, 6,000 शेयर्स। अंडरस्टूड। तो 4,000 पे कितना फोर फीचर बैठ रहा है, 20,000। अंडरस्टूड। ये 30,000 नहीं उठा सकते हम फोर फीचर का पैसा, क्योंकि ये तो 6,000 शेयर्स पे फोरफिट हुआ था, जब्त हुआ था। तो एक्चुअल में तुम्हें 4,000 पे कितना पैसा जब्त हुआ है, 20,000। अंडरस्टूड। कितने शेयर्स, वर्थ रुपीज 20,000। देखो 30,000 तो वो 6,000 शेयर्स पे था, तो एक्चुअल में फोर फीचर के टाइम पे 4,000 पे कितना अमाउंट फोर फीचर हुआ, 20,000। तो तुम और देखो वहां डेबिट है और यहाँ से क्रेडिट, तो तुम्हें पता ही चल रहा है कि 4,000 शेयर्स पे ही था। तो वो फोर फीचर का पैसा हम यहाँ से उठा लेंगे, 4,000 शेयर्स पे 20,000, और रीशू 4,000 पे कितना हो रहा है फोर फीचर, 8,000। तो 20-8 करोगे तुम, राइट। और वो सारा पैसा किस में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कैसे करोगे, 20,000 माइनस 8,000, तो कितना बैठा, 12,000 और 12,000। गॉट दैट। Yes, ma'am. और क्या लिखोगे, बीइंग गेन। अगर ये पूरा 6,000 इशू करते हैं ना, तो हम डायरेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं डायरेक्ट, सपोज अगर ये रीशू 6,000 पे होता है ना, तो मैं क्या करती, 30,000 माइनस ये 8,000। बट कर ही नहीं सकते 30,000 माइनस 8,000, क्योंकि जो तुम फोर फीचर कर रहे हो, जितने नंबर ऑफ शेयर्स और जितने रीइश्यू कर रहे हो नंबर ऑफ शेयर्स, वो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। सो यू विल बी राइटिंग बीइंग गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, राइट।
Okay, do you want to copy anything from here? Though I had shared earlier pics of this, but if you want to copy something, you can take screenshot or something like that. What do you say? I will copy the pro rata and the journal. And if you want to take screenshot, that also you can do. Means you want to copy it, right? I'll take a screenshot. Yes, it's better. Then we will start with this thing, cash flow, right? It will save you much time. It's fine. And ma'am, could you send important questions of accounting ratios well? Yes, that I also wanted to send you, right? Yes, ratios, whatever we have done so far regarding ratios, that are all important. Means I had selected those questions only that are important, right? So, what kind of questions they are asking generally return on investment, right? That you have done. Also, this trade receivable questions that also you have done. Also, I had told you earning before interest and tax question that also we had done. Okay, but yes, I have one question of cash book, this ratio that was in 2024-25 that we will quickly do, right? अभी कर लेते हैं इसको, है ना? मैंने कहीं लिखा भी हुआ था इसमें, फिर कर लेंगे उस पे। ईबीआईटी क्वेश्चन आ सकता है और ऑपरेटिंग रेशियो आ सकता है दिस तरह के। आई टेक्स्ट ऑन दिस थिंग, राइट, ऑन द ग्रुप। मीन्स जो भी क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं ना सारे रेशियोज के, दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सिलेक्टेड दोज वंस ओनली, राइट? तुम्हें वही वही वेराइटीज मेन रिवाइज करनी है जिसमें परसेंटेज कॉस्ट प्लस वैल्यूज दे रखी है, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. I'll text also. I had written pages, but what I got to know, I had gone for the soft copy, but that was 2024 edition. So I think pages might be different. But still I'll share the pages, okay? Yes, ma'am, sure. Means you can match it with your book. I had selected some examples and answered questions of ratios, but the edition is different. The pages might be different. Taken screenshot of this thing. Could you scroll down only at the bill? Yes, yes. बस इसमें 5:4 का मतलब समझ आ गया ना कि अगर 5 की डिमांड है तो तुम कितने दे रहे हो? सिर्फ 4 शेयर्स, राइट? ऐसे हिंदी में समझ लिया करो। और हमेशा ध्यान रखना जब हम एक्सेस मनी का कॉलम बनाते हैं ना तो उसमें टोटल में जरूरत नहीं होती लिखने की, क्योंकि वो टोटल एक्सेस मनी तो हम एडजस्ट कर रहे हैं ना अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे, राइट? Ma'am. तो वो तुमको दिखाने की मतलब टोटल में दिखाने की जरूरत नहीं होती वो वाला अमाउंट। Done, ma'am. This one. Done. Done, ma'am. Okay. Also, if you have any phone in handy, you can take pic also, right? Yeah, I'm taking a screenshot of it. Yes, means if you are getting screenshot, it's good. Means if there is any difficulty in taking screenshot, then you can take clicks, right? Yes, ma'am. थोड़ा मतलब हिंट लग गया ना कैसे करना है ये वाला, क्योंकि इस तरह के ना पक्का आते ही आते हैं एग्जाम में 6-6 मार्क्स में। तो डोंट लीव इट, क्योंकि इतने मुश्किल होते नहीं है, बस प्रैक्टिस का खेल है, हाँ? वो चीज है।
इसके और कोई क्वेश्चन चाहिए तो मैम वो भी आप भेज देना ग्रुप में। क्या चीज? अगर इससे रिलेटेड और कोई, वो ना मुझे अभी से वॉल्यूम 1 के अभी मैंने शेयर्स वो पेज नंबर शेयर किए थे ना, मैं अभी वॉल्यूम 2 के भी तुम्हें करूंगी पेजेस शेयर, राइट? उसमें वैरायटी दे दूंगी कि ये रिवाइज कर लो, उससे अच्छा हो जाएगा तैयारी, है ना? और कैश फ्लो और अकाउंटिंग रेशियो के लिए भी वो वैसे सेंड कर देना। वो ना मैं अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ वॉल्यूम 3, अगर मुझे मिल जाए ना, क्या? तो अगर अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसमें से दे दूंगी, नहीं तो वट एवर, अदरवाइज आई विल गिव फ्रॉम नेट, ओके। बट वो एडिशन मेरे को ना 2023-24 दिख रही है, डाउनलोड की थी मैंने बुक ना, मैंने सोचा तब तक सॉफ्ट कॉपी से ही पेज नंबर्स बता देती हूँ, बट वो पुरानी एडिशन निकली अनफॉर्चुनेटली। ओके, आई शैल सी टू दैट। आई हैड रिटन पेजेस, आई शेयर दोज पेजेस, क्या पता मैच ही कर जाए पेजेस, है ना? नहीं तो उसमें देख लेना, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ना, उससे मैच कर लेना 23-24 के एडिशन से ऑनलाइन, जो पेजेस में शेयर करूंगी उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। ओके, ये वाले, ये वाला पेज कर लिया, ये वाला स्क्रीनशॉट? हाँ मैम, थर्ड वाला करना है। सॉरी, थर्ड वाले पे करना है अभी। कर लिया? ऐसे करूँ मतलब, ये, है ना? हाँ। अरे ये वाला मेरे को काफी टाइम से दिमाग में था कि मेरे को करना है, क्योंकि तुम्हें प्रोराटा पता है, तुम्हें रेशियो पता है, तुम्हें फोर फीचर पता है, प्रॉब्लम पता है पंगा कहाँ पे पड़ा था, ये रेशियो दे दिए इन्होंने जान के कंफ्यूज करने के लिए। तो रेशियो से हमको खुद हिसाब बिठाना पड़ेगा कि अगर 1,10,000 की डिमांड है तो उस हिसाब से तुम्हारे पास तो 80,000 ही है, और डिमांड आ रही है 1,10,000 की, और फिर ये भी बोल रहा है कि प्रोराटा 5:4 में करना है। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि 5:4 का मतलब हमारे पास कम है सप्लाई, सप्लाई हम कम कर रहे हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 80,000 शेयर्स बेचना चाह रही हूँ, तो मीन्स मैं 4 यूनिट्स बेचना चाह रही हूँ। तो वो बोल रहा है 4 यूनिट्स के हिसाब से डिमांड कितनी है, 5 यूनिट्स की। तो 5 यूनिट्स पे एक्चुअल डिमांड कितनी बैठी, 1 लाख शेयर्स। अब भाई आई बात समझ, हम ये नहीं कह सकते कि 5 यूनिट मतलब 1,10,000, 1,10,000 तो टोटल डिमांड थी। तो अगर हम 80,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर 5 यूनिट्स की डिमांड है और हम 4 दे रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने हमको सेलिंग वाला दे रखा था कि हम 80,000 शेयर दे रहे हैं। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि 80,000 दे किसको रहे हैं। तो हमने रेशियो से चेक कर लिया कि 80,000 अगर हम दे रहे हैं तो मीन्स डिमांड ज्यादा है, तो मतलब हम 1 लाख वालों को दे रहे हैं, राइट? क्योंकि प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। जब हम प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे शेयर्स दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टीज को हम इग्नोर भी कर रहे हो, जैसे हमने रिजेक्ट कर दिया, राइट? ये ना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस हैं। इट्स जस्ट बस करते रहो तो उससे ना मतलब एक बार समझ आ जाए ना कॉन्सेप्ट, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, राइट? यस, हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? हाँ मैम, लेंगे। यस, व्हाट? Could you scroll down to the fifth one? ओके, दिस यू हैव टेकन फोर्थ फ्रॉम द बॉटम आल्सो, यू कैन टेक दिस थिंग। मतलब ये शेयर्स का टॉपिक और डिबेंचर्स के टॉपिक, ये बहुत मजेदार टॉपिक्स हैं, राइट? ऑल्सो डिबेंचर्स का ना रिडेम्पशन की जो लास्ट की 2 एंट्रीज केसेस थे ना, केस 4 केस 5, जब हम लिखते हैं ना लॉस, तो जब हमारा वो होता है ना कि इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो लॉस में तुम खाली डिस्काउंट का अमाउंट में लिखते हैं, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना प्रीमियम और रिडेम्पशन हमारे लिए लॉस है, तो वही सेम पैसा हम डेबिट वाले लॉस में भी लिख देते हैं। बट जब हमारा फिफ्थ केस आता है ना, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो मीन्स उसमें मैं लॉस वाला पैसा भी लिख रही हूँ और मैं प्रीमियम वाला पैसा भी लिख रही हूँ, ठीक है? तो उसका भी मैं न्यूमेरिकल एक बार फिर से शेयर कर दूंगी कोई, जिससे प्रैक्टिस हो जाए। मैं बुक में ही लिख दूंगी अमाउंट ना, जिससे इजी हो जाए तुमको दोबारा से। क्लियर है? Yes मैम। फिफ्थ वाला देख रहे हैं। और जो मैंने देखा है ना सैम्पल पेपर्स में, ज्यादातर रेशियोज के वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले ही आ रहे हैं, जिसमें तुम्हें डिबेंचर्स रेट दे रखा होगा, थोड़ी बहुत सेल्स दे रखी होगी, या फिर तुम्हें कंडीशन दे रखी होगी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस तुम्हारा कॉस्ट प्लस दिस थिंग 20% प्लस कॉस्ट, मतलब तुम कॉस्ट से ज्यादा रुपए पे बेच रहे हो, इस तरह से। इस तरह की क्वेश्चंस है, कंडीशनल क्वेश्चन ज्यादातर।
रेशियोज में मैंने तुम्हें बता दिया, वो दो दो रेशियोज जब दी होती है ना, वो तो पक्का आता ही आता है। बस उसमें ये नहीं कह सकते कि एक रेशियो वाला आएगा या दो रेशियो वाला, बट इनमें से एक पक्का आता है जिसमें तुम्हें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ढूंढनी है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट? इसका हाँ। स्क्रीनशॉट इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, यस। ये वाला। यस मैम। ये वाला। यस। ये वाला। यस मैम। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना? मैं तभी कि ये कॉन्सेप्ट भी बताना चाह रही थी कि जब भी ऐसा केस होता है ना कि जब तुमने फोर फीचर तो ज्यादा कर दिया, ठीक है, देखो, फोर फीचर तो कर रही हूँ मैं 6,000 के शेयर्स, और रीइश्यू कर रही हूँ कम शेयर्स, तो हमको हमेशा पहले जितने हमने रीइश्यू करे हैं ना उस पे देखते हैं कि हम फोर फीचर कितना एक्चुअल में बैठा था। अगर मैं 6,000 पे देखूँ तो मेरा फोर फीचर का अमाउंट था 30,000, बट मेरे को ये 30,000 से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि मैं रीइश्यू सिर्फ 4,000 शेयर्स कर रही हूँ। तो मेरे को रीइश्यू भी पहले फोर फीचर का अमाउंट किस पे, कितने शेयर्स पे चेक करना पड़ेगा, 4,000 शेयर्स पे। अंडरस्टूड? तो ये कौन सा किस केस होता है जब फोर फीचर ज्यादा है रीइश्यू से। अगर तो फोर फीचर हमारा रीइश्यू के इक्वली होता है, तब तो हम सीधा डेबिट माइनस क्रेडिट करके सीधा कैपिटल रिजर्व में जितना बचता है वो, मतलब वो जितना बचता है पैसा वो सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं बट हमें यहाँ पे पहले चेक करना पड़ रहा था, राइट? तो ये कौन सा केस है जब फोर फीचर रीइश्यू से ज्यादा होगा? अगर दोनों सेम है, मतलब इन्होंने अगर हमको ये बोला होता 6,000 ही हम फोरफिट कर रहे हैं, 6,000 ही हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो हम सीधा करते फोर फीचर का डेबिट माइनस फोर फीचर का क्रेडिट, मतलब बड़ा अमाउंट माइनस छोटा अमाउंट, जो भी होता है उनमें बड़ा बड़ा माइनस छोटा, ठीक है, और ये कैपिटल रिजर्व में उतना लिख देते। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं क्योंकि जर्नल एंट्रीज, प्रोराटा, ये सब तुम्हें आता है। ये इट्स जस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए ना सारे केसेस इकट्ठे दे देते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसमें सब कुछ कवर हो गया, प्रोराटा भी, फोर फीचर भी, रीइश्यू भी, राइट? यस मैम। अब आता है हमारा वो वाला। तो मुझे कौन सा बोल रहे थे मैं ना, डिबेंचर्स का एक इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला दोबारा रिवाइज करवाना चाह रही थी, केस 5। वो भी करवा दूं पहले, क्योंकि रेशियोज के तो इजी हैं, वो मैं तुम्हें एक आधा और दे दूंगी क्लिक, राइट? ठीक है। वो वाला ना थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो मैं बताना चाह रही हूँ ना, केस 4 और केस 5 में डिफरेंस। यस क्योंकि मैम। ना रेशियोज का मेरे को पता है तुम कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा तुम्हारे लिए। वैसे तो कोई सा भी डिफिकल्ट नहीं होगा। वेट, मैं ना मेरा पहले डिफेंसिव केस निकाल दूँ। मैम यस। अब आखिरी के 10 दिन है तो उसके अंदर मोस्टली कैसे करना चाहिए? देखो, अभी तो वो तुमने वो वाली शुरू कर ली जो पेजेस मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए, कौन सी वाली? जो व्हाट्सअप किया था ना कि ये पेजेस रिवाइज कर लो वॉल्यूम 1 के। अच्छा हाँ हाँ वो। मिल गया था वो मैसेज? नहीं तो मैं दोबारा रीशेयर कर दूंगी मैसेज। चैप्टर 1 चैप्टर 2 वो सब कुछ। हाँ 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 हाँ, वो मिल गया था। वो पहले तो उन पे नजर मार लो, ठीक है? वो क्यों बोल रही हूँ मैं तुम्हें, वॉल्यूम 1 के सारे चैप्टर्स पे नजर मार लो क्योंकि उसमें ना छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे तुम्हें। आ रही है बात समझ? हाँ। है ना? वो कर लो, क्योंकि उसमें तुम्हारे 1 1 मार्क्स के भी कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। 1 मार्क्स भी, 6 मार्क्स भी, ऑलमोस्ट पार्टनरशिप कवर हो जाएगी, ठीक है? उसमें मैं रिटायरमेंट और डेथ और डिसोल्यूशन तो मैंने तुम्हें बता दिया, रियलाइजेशन अकाउंट ही आते हैं उसमें से, है ना? या फिर कोई भी जर्नल एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन की। बाकी रिटायरमेंट और डेथ के भी मैं पेजेस दे दूंगी। तो पहले वॉल्यूम 1 पे अभी पता है क्या करो आजकल, अ, ऐसे मतलब एट अ स्ट्रेच पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा पढ़ो फिर थोड़ा एक आधे घंटे की नींद ले लो, 2 घंटे की, फिर पढ़ो, ऐसे ऐसे करते रहो। एट अ स्ट्रेच मत पढ़ना क्योंकि फिर बहुत थकावट हो जाती है। बट अभी से शुरू कर दो और वो पहले पेजेस गो थ्रू कर लो क्योंकि उसमें मैंने जर्नल एंट्रीज भी लिखी है सारी, तो उससे काफी कुछ कवर हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वॉल्यूम का, राइट? क्या? और मैंने बता दी कि ना ऐसे जरूरी नहीं होता कि तुमको हर चीज कॉपी में ही, नोटबुक में ही सॉल्व करनी है, क्योंकि एग्जांपल्स दिए तो तुम एक पेंसिल नोट में ऐसे पेंसिल से चेक करते रहो कि मुझे ये फॉर्मूला आता है, मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आती है तो ठीक है, बस उस पर एक बार नजर मारो एंड स्किप इट, राइट?
मतलब वो जस्ट एक एनालिसिस होता है कि हाँ मुझे ये चीज नहीं आती तो ये वाली मैं दोबारा करके देख लेता हूँ, या अपनी बुक में ही वो चीजें ना कैलकुलेशन सॉल्व कर करके देखते रहो, अच्छा ये वाला अमाउंट यहाँ गया, ये वाला अमाउंट यहाँ गया। और तुम्हें पता है ना, पीएनएल में अगर तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर तुमको वो बनाना होता है डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट, तो कुछ नहीं होता, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम्स यहाँ होती है ना लेफ्ट में, ठीक है। राइट में, ठीक है। तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जो सारी चीजें यहाँ पे थी ना, देखो यहाँ पे क्या होता है ज्यादातर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, कोई नेट लॉस हो गया तुम्हारा, वो ट्रांसफर कर दिया, राइट, नॉट नेट लॉस, सॉरी, हम यहाँ से तो नेट प्रॉफिट उठाते हैं ना, स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेट प्रॉफिट, और यहाँ इसकी कहाँ से होती है नेट लॉस, राइट। फिर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी, इधर आता है पार्टनर्स कमीशन, राइट, पार्टनर्स सैलरी, फिर आता है पार्टनर्स दिस थिंग, कुछ भी मतलब उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, फिर आ जाता है उनका शेयर, ग्रॉस प्रॉफिट, इधर बच रहा है बैलेंस तो ग्रॉस प्रॉफिट, इधर बच रहा है तो ग्रॉस लॉस, लाइक दैट, राइट। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जो तुम्हारी ये वाली लेफ्ट साइड की सारी चीजें है ना, वो देखो तुमने कैलकुलेट तो कर लिया, इतना ग्रॉस प्रॉफिट था, तो डिस्ट्रीब्यूट किसके थ्रू करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ना, तो वो सारी चीजें यहाँ आ जाती हैं, डायगनली शिफ्ट हो जाता है, बस ये रूल चलता है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे आता है, तो ये यहाँ अगर ग्रॉस लॉस भी होगा तो वो भी यहाँ, राइट। और यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बस क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आता ही आता है, ड्रॉइंग साथ में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगर तुम एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बना रहे हो ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स भी आ जाती है, आईओडी तो आएगी आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलॉन्ग विद दैट तुम्हारा ड्रॉइंग्स भी आ जाएगा, राइट। ये सारी चीजें आ जाती हैं जो तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस पे नजर मार लेना, इसलिए मैंने पेज नंबर दे दिए कि वो थोड़ा गो थ्रू कर लो जो पेज नंबर्स मैंने दिए हैं, राइट। आ गई ये चीज समझ? ठीक हेलो, है। है ना, पहले वो नजर मार लो सारे क्वेश्चंस, फिर मैं तुम्हें थोड़े और पेजेस दूंगी वॉल्यूम 2 के भी और रिटायरमेंट और डेथ के भी, बस वो देखते जाओ। अब सारे अनसॉल्व सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तभी मैंने एग्जांपल्स दिए, क्योंकि एक पेंसिल उठाओ और जल्दी जल्दी उस पर देखते जाओ, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, ये नहीं आता तो ये मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ, मीन्स डोंट वेस्ट टाइम। और जर्नल एंट्रीज भी तुम्हें जो जो आती है वेल एंड गुड, मतलब एनालिसिस करते जाओ, टिक टिक टिक, ये डन ये डन ये डन, राइट। और अभी से ही करना शुरू कर दो, क्योंकि एक दिन पहले करोगे ना एग्जाम के, तो जो आता होगा वो भी भूल जाओगे, राइट। अब ना मैं मुझे क्विकली ना जरा एक ये डिस्कस करना है केस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और मैं सोची थी एक एडजस्टमेंट टेबल भी डिस्कस कर लेती तुमसे। क्या चाहते हो, पहले एडजस्टमेंट टेबल करूं या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वाला करूं, रिडेम्पशन ऑन डिवेंचर्स? Redemption of debentures. रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। मेरे हिसाब से ना केस 4 और केस 5 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम, है ना। देखो, इसमें ना रिडेम्पशन की हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, वैसे तो हम चार चार एंट्रीज करते हैं, बट जनरली तुम्हारे क्वेश्चंस में यही माना गया है कि बस इशू वाली एंट्री कर दो। तो केस 4 क्या बोलता है, मुझे यहाँ पे बस अमाउंट मेन बताना है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, इशूड एट पार, राइट। और क्या बोला हुआ, रिडीमेबल एट प्रीमियम। और एक चीज ध्यान रखना, डिवेंचर्स कभी भी ना डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते, ये सीन है, रिडीम नहीं होंगे डिस्काउंट पे, अदरवाइज कंपनी विल रन इनटू लॉसेस। पहले रिडीम होते थे डिवेंचर्स ना डिस्काउंट पे भी, बट उससे ना कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जाने लगी थी, राइट। तो वो डिस्काउंट का किस्सा ही इन्होंने हटा दिया रिडेम्पशन के टाइम पे। तो तुमने देखा होगा हमने सिर्फ दो ही चीजें लिखी हुई रिडेम्पशन में, या तो वो पार पे हो रहे हैं या वो प्रीमियम पे, राइट। तो ये केस 4 है, तो यहाँ पे तुमको मेन फोकस क्या करना है कि मैं अमाउंट कैसे लिखूंगी। तो इशू का केसेस ही बोले हुए इन्होंने, तो पहले इशू ही डिस्कस करते हैं मेन, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये वाला तो साइड वाला तो देख के लेफ्ट साइड से पता चल जाता है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन, राइट, बीइंग डिवेंचर, ये तो हो गई तुम्हारी ड्यू की एंट्री, और ये मतलब रिसिप्ट की एंट्री, जहां पे भी बैंक डेबिट होगा मीन्स पैसा आ रहा है, मैंने बताया था ना एप्लीकेशन पे पहले पैसा इकट्ठा होता है, तो देखो हमने क्या लिखा हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। ऑल्सो मैंने नरेशन के लिए बहुत छोटी सी स्पेस छोड़ती हूँ, क्योंकि हमें ये चार एंट्रीज लिखनी है। सबसे पहले आता है डिवेंचर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट, दिस इज फर्स्ट एंट्री, दिस इज सेकेंड एंट्री, पहली वाली रिसिप्ट, दूसरी वाली ड्यू, या कह लो अलॉटमेंट की, कि कितना अलॉट कर रहे हैं। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर बोल रहा है टू डिबेंचर अकाउंट, फिर बोल रहा है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, राइट। केस पे ध्यान देना,
जब भी तुम करोगे ना कोई भी केस पेपर में, ये ध्यान देने वाली चीजें हैं बस, एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, तुम कंपनी हो, तुमको पैसों की जरूरत थी, तुमने लोन ले लिया, डिबेंचर क्या, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तुम कंपनी, यस यस Someone is at the door. I'll just quickly यस come. यस 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 यस। Yes, ma'am. Please continue. Yes, see, I have written it again because I wanted more space to show you the calculation part, right? See, issued at par, redeemable at premium, और ये कौन सा वाला केस है हमारा, केस 4, राइट। तो इसमें देखो, पहली एंट्री हम ज्यादातर ये इशू की पूछते हैं ना, इसलिए मैं इशू वाले ही डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हमको अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक है। जब भी तुम केस 4 केस 5 करोगे ना, तो तुमने इस लॉस पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, बोल रहा है पार पे हमने इशू किया, प्रीमियम पे। तुम कंपनी हो, तुमको लोन की जरूरत थी, तुमने ले लिया, और तुमने मुझसे लोन लिया, तो उसके बदले मैंने तुमसे क्या ले लिया, डिबेंचर्स। जब तुमने मुझे डिबेंचर्स दिए ना, तुमने मुझे पार वैल्यू पे दिए, इशूड एट पार मीन फेस वैल्यू पे, राइट। समझ आ रही है बात। Ma'am. और पार मीन्स फेस वैल्यू, कितनी फेस वैल्यू है, 100 रुपए, मैं एग्जांपल ले रही हूँ 100 रुपए वाला, ठीक है। अब देखो, तुम्हें कितने बोल रहा है, इशूड कितने के डिबेंचर्स इशू किए, मतलब तुमने कितने का लोन उठाया मुझसे, 8 लाख रुपए का, ठीक है।
और उन डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। ठीक है, ये बोल रहा है तुमने मेरे से 8 लाख का लोन उठाया और फेस वैल्यू थी 100 रुपए, तो ऐसे चेक कर लो कि मतलब तुमने कितने, उसके बदले मेरे को कितने डिबेंचर्स इशू किए होंगे, रुपीस। 8 लाख रुपीस है और फेस वैल्यू भी रुपीस है, तो रुपीस बटा रुपीस कह लो, रुपीस ओवर रुपीस। तो मतलब तुमने उसके बदले मेरे को कितने डिबेंचर्स इशू किए, 8,000 डिबेंचर्स, राइट। देखो 8,000 इंटू 100 करके देखेंगे तो 8 लाख ही बैठता है ना। आ रही है ये चीज समझ, आया कुछ कुछ समझ इसमें, है ना। Yes, ma'am. ना वो ये बोल रहा है कि इशूड एट प्रीमियम, सॉरी रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब देखो रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब क्या है, तुमने मुझसे 8 लाख का लोन लिया, बट जब तुम्हारी रीपेमेंट की बारी है ना, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। जब तुम्हारे वो 8 लाख वापस करने की बारी आई ना, तो डिबेंचर्स के रेट बढ़ गए, राइट। अब देखो तुम भी बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, है ना। दोनों को पता है मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, और दोनों के लिए वो डिबेंचर्स बहुत फायदेमंद है। तो मुझे पता चला कि जो डिबेंचर्स तुमने मुझे दिए थे ना, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। जैसे मैंने तुम्हें गोल्ड का एग्जांपल दिया था, सपोज तुमने मुझे 50,000 गोल्ड, 50,000 रुपए का गोल्ड दिया, 50,000, ओके, इतना एग्जांपल ले लो। अब उस 50,000 की वैल्यू बढ़ गई, 80,000 हो गई मार्केट में। जब तुमने मेरे को वो गोल्ड दिया और उसके बदले मुझसे पैसे लिए, तो तुमने लिए 50,000। ऐसे ले लो, इसमें इस 8 लाख का एग्जांपल ले लो। सपोज तुमने मुझे गोल्ड, मेरे पास गोल्ड गिरवी रखवाया, ठीक है, और उसके बदले तुमने मुझसे कितने लिए, 8 लाख रुपए। अंडरस्टैंड। उस वक्त गोल्ड का रेट था 8 लाख। अब ये बोल रहा है जब रिडीम करने की बारी आई तो उस पर 10% प्रीमियम बैठ गया, मीन्स वैल्यू बढ़ गई 10% से। और मैंने बताया था चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, वो हमेशा फेस वैल्यू पे चेक होता है। तो अगर मैं करके देखूं 10% ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपए, 0000, कितना बैठ रहा है, 10 रुपए। तो पहले फेस वैल्यू अगर 100 रुपए थी, प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट तुम्हारा बैठा 10 रुपए, तो एक्चुअल में जो मार्केट वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 110 रुपए, यही हुआ ना, है ना। Yes, ma'am. 110 रुपए। तो मतलब जो तुमने गोल्ड मेरे को दिया था ना, गिरवी रखवाया था, उसकी वैल्यू थी 8 लाख। अब मैं तुमसे 8 लाख वापस नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे को पता है उस गोल्ड की वैल्यू 10% से बढ़ गई है। तो मतलब मैं करके देखूंगी, 8,000 डिबेंचर्स को 100 से नहीं करूंगी, अब मैं 110 से करूंगी कि मार्केट वैल्यू कितनी बैठ रही है उसकी, 88। तो ये बैठा 8,80,000। तो मैं तुम्हें क्या कहूंगी कि ठीक है, गोल्ड वो लोन वापस कर दो, बट तुम मुझे 8 लाख नहीं दोगे, तुम मुझे कितने दोगे, 8,80,000, और अपना गोल्ड ले लो, राइट, वापस ले लो। क्लियर है ये चीज। तो तुम नुकसान में रहे या फायदे में रहे, तुम सोचो। तुम्हें 80,000 का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ ना। Yes, ma'am. क्योंकि डिबेंचर की वैल्यू तो तब बढ़ी जब तुम्हारे को लोन वापस देने का टाइम आया। जब तुमने लोन लिया था तब तो फेस वैल्यू कितनी चल रही थी, सिर्फ 100 रुपए। तो तुमको लोन भी सिर्फ 100 रुपए पे ही मिला, कितने, 8 लाख ही मिले मेरी तरफ से। बट जब तुमने ऑब्वियस है, तुम अपने हिसाब से तो मेरे को 8 लाख दोगे ना वापस, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की तो हम यहाँ पे अभी बात ही नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम प्रीमियम और उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोन लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, वो तो एक अलग चीज है ना। अभी हम यहाँ पे ये देख रहे हैं मार्केट वैल्यू कितनी है। तो मैंने बोला ठीक है, 8 लाख तो दो ही दो, अब तुम्हारे गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है 80,000 से, तो मैं तुमसे लोन का पैसा जो वापस ले रही हूँ वो पूरा लूंगी, 8,80,000। तो उस हिसाब से 80,000 का तुमको हो गया लॉस। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे लॉस का मतलब क्या है ये वाला लॉस, राइट, कैन यू सी द बोर्ड। Yes, ma'am. तो ये लॉस क्या हुआ, वो वाला 80,000 रुपए, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ कैसे, 8,000 पे तुम्हारे 10 रुपए प्रीमियम बैठ गया। और ये लॉस होता क्या है, ये प्रीमियम वाला लॉस, जब तुमने रिडीम किए थे डिबेंचर्स एट प्रीमियम, तो रिडीम यहाँ पे प्रीमियम तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं है, तुम्हारे लिए क्या है, वो लॉस है। तभी देखो मैंने यहाँ पे भी 80,000, वहां भी 80,000, तो मैं ऐसे लिखूंगी 80,000 डेबिट और 80,000 क्रेडिट। अंडरस्टूड, है ना। और यहाँ पे एक ट्रिक क्या चलती है, जो डिबेंचर्स लिखा होता है, डिबेंचर्स पे तो हमेशा फेस वैल्यू ही चलती है। तो मैं कैसे लिखूंगी, 8,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 लाख। तो देखो क्रेडिट में हमारा पूरा पैसा हो गया 8,80,000, यहाँ आ गया 80,000, तो डेबिट में अंडरस्टूड है, जो बचा वो यहाँ आ जाएगा 8 लाख, राइट। बैलेंसिंग फिगर यू कैन से, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो। और तुम्हें वैसे भी पता है कि बैंक में कितना पैसा आएगा, तुमने इशूड एट पार किया था। तो इफ यू वांट टू कॉपी फ्रॉम हेयर, 8,000, 8 लाख। अरे ये चीज समझ, तुमने बैंक में कितना पैसा आया,
तुमने 8,000 डिबेंचर्स इशू किए थे एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू। तो पहले बैंक की एंट्री चेक कर लो, कितने बैठे, 8 लाख, और इधर भी 8 लाख, डेबिट 8 लाख क्रेडिट। तो तुम अगर चाहो, अगर तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, तो ये देखो ये एंट्री सेम ही होती है, तो यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। ये दोनों एंट्री सेम ही है ना, तो यहाँ से 8 लाख का पैसा हमने कॉपी कर लिया, ये क्या लो, समझ आ गया ये। तो Yes. पहले जो जो अमाउंट तुमको पता होता है वो लिख लिया करो। ये समझ आ गया ना, इशूड एट पार मीन्स तुमने तो पार वैल्यू पे किया था, तो तुम्हें बैंक में कितना पैसा आएगा, 100 रुपए के हिसाब से ही आएगा ना तुम्हारे पास बैंक में पैसा। तुम कंपनी हो, तुम लोन ले रही हो, तो तुम अगर तुम मेरे से लोन भी ले रहे हो तो तुम मेरे पास आके थोड़ी ना लोगे लोन। तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, राइट। मतलब बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि अगर वो लोन भी ले रहा है तो किसी के पास जाके लेंगे, वो सीधा उनके बैंक रिसीव कर लेता है, कोई भी एजेंट रिसीव कर लेगा, राइट। तो तुमने अपने एजेंट को भेज दिया, एजेंट कौन था, बैंक का एजेंट ही है जिस बैंक अकाउंट में तुमने पैसे खोल रखे, वो अकाउंट खोल रखा है, राइट। वैसे तो आजकल यूपीआई ट्रांजेक्शन ही हो जाती है, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, तुम्हारे बैंक ने पैसे रिसीव कर लिए लोन के, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट मीन्स डेबिट द रिसीवर। इस वक्त लोन के पैसे कौन रिसीव कर रहा है, कंपनी। तुम कंपनी हो, तुम ये जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, ओके 8 लाख आ गए हमारे अकाउंट में। अब तुम चेक कर रहे हो कि रिडीम हमारा अगर प्रीमियम पे है तो ये रिडेम्पशन की एंट्री नहीं है, ये तो तुम ये चेक कर रहे हो। देखो ये वाली थी तुम्हारी रिसिप्ट की एंट्री, जब भी हम बैंक अकाउंट लिखते हैं तो मीन्स कुछ रिसीव हो रहा है पैसा, तो ये रिसिप्ट की एंट्री थी। और ये थी कि हाउ मच डिबेंचर्स हैव टू बी इशूड, ड्यू की एंट्री कह सकते हो या इशू की एंट्री कह सकते हो, इसे दो तरह से कह सकते हो। तो इस वक्त तुम ये चेक कर रहे हो तो कि ठीक है, अगर मैंने 8 लाख का लोन दिया है तो जब मैं यहाँ पे रिडीम करूंगा, मतलब राइट साइड जब मैं एंट्रीज करूंगा वो वाली पेमेंट की, तो मुझे कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे, राइट। अंडरस्टूड। तो मैं मुझे मेन ये चीज बतानी थी कि यहाँ पे लॉस का मतलब होता है बस ये प्रीमियम का पैसा 80,000, और ये भी 80,000। अंडरस्टूड, आई बात कुछ समझ, कुछ Yes. कुछ समझ आ गई। ये लॉस प्रीमियम, ये प्रीमियम हो गया, यहाँ पे प्रीमियम के पैसे को हम क्या बोलते हैं, लॉस मनी, राइट। ये था केस 4, मतलब ये मैंने बताना था कि केस 4 में लॉस का मतलब है ये प्रीमियम वाला पैसा। अब केस 5 आता है, उसमें भी लॉस वर्ड आता है, वहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो कैसे करेंगे। केस 5 बोलता है इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि पहले 3 केसेस तो बहुत इजी है, इसमें पंगा पड़ जाता है, वहां पे मतलब अमाउंट में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। इशूड रिडीमेबल एट प्रीमियम, राइट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तुम्हें हिंदी पूरी आती है ना? हाँ मैम। हाँ, Yes मैम। ओके फिर तो ठीक है, क्योंकि ना हिंदी में थोड़ा ना समझाने का फ्लो बन जाता है। हाँ मैम। Correct. इंग्लिश में ना थोड़ा बोलते रहो ना, इंग्लिश में वो इट फील्स लाइक कि मैं सिर्फ वो बोल रही हूँ, रूल्स बोल रही हूँ। तो हाँ। जिनको हिंदी आती है तो मतलब वी कैन बी बायलिंगुअल, राइट। क्योंकि मैंने देखा है ना, अगर अकाउंट्स में हम इंग्लिश इंग्लिश करते रहे ना तो वो ऐसे फील होता है कि बस हम बुक से ना रट्टे मार के रूल्स बोल रहे हैं, हाँ तो वैसे वही। तो है ना, वैसे तो कुछ फील होता है। तो Yes. इसीलिए थोड़ा मैं लैंग्वेज चेंज करके बोल रही हूँ, क्योंकि अपना भी बोलने का फ्लो बन जाता है ना। देखो, और तुमको भी इजी रहेगा, तुमको कुछ पूछना तुम डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो कि ये ऐसे करके, है ना। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। देखो एंट्री तो वही है ना। क्यों एंट्री सेम है, क्योंकि हम हमारा पिछला केस भी बोलता था रिडीमेबल एट प्रीमियम, यहाँ भी बोल रहे हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो एंट्रीज तो डिट्टो सेम ही है इशू वाली। देखो जो एंट्रीज हमने पीछे करी थी अभी केस 4 में, वही हम यहाँ कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे लॉस का मतलब चेंज हो जाता है, लॉस। तो तुम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो तुम्हारी मर्जी है, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन 5 एंट्रीज बेटर है 4 एंट्रीज ही करो, उससे इजी रहता है। यहाँ पे तुम्हारी बुक में ना इसको 5 एंट्रीज बना के दिया हो, वो तो सीन क्रिएट करने वाली बात है, बेटर है केस 4 केस 5 सेम ही चलाओ, उससे तुमको बार बार अलग अलग एंट्रीज लर्न करनी नहीं पड़ेंगी, एक बार केस 4 की कर ली वही केस 5 की होगी। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, राइट। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तुम्हें पता है ये बोल रहा था इशूड एट डिस्काउंट। देखो जब तुम इशूड एट डिस्काउंट कर रहे हो ना, तुमने मेरे से लोन उठाया, ठीक है, और तुमने मेरे को डिबेंचर्स इशू कर दिए, ठीक है, मतलब तुमने मुझे गोल्ड दे दिया। अब जब तुमने मुझे गोल्ड दिया ना, उस वक्त उस गोल्ड की वैल्यू बहुत कम चल रही थी। सपोज उस गोल्ड की वैल्यू चल रही थी दिस थिंग 1 लाख, ठीक है। तुमको पैसों की जरूरत थी
ऐसे देख लेना, यहीं से उठा लेती हूँ मैं अमाउंट, ज्यादा बेटर रहेगा, फिर इजी हो जाएगा समझना। देखो, तुमने मेरे को 10,000 के शेयर्स इशू करे, ठीक ठीक है। तुम्हें 1 लाख का लोन चाहिए, ऐसे मान के चलो, तुम्हें 1 लाख का लोन चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, तो फेस वैल्यू तुम्हारी है 10 रुपए, राइट। तो उस हिसाब से मतलब तुम मुझे कितने शेयर डिबेंचर्स इशू करोगे? 10,000 डिबेंचर्स, जिससे तुमको एट द रेट ऑफ 10 कितना पैसा मिल जाए, पूरे पूरे 1 लाख। बट यहाँ पे बोला जब तुमने इशू किया ना, तो उन डिबेंचर्स की वैल्यू 10 रुपए से गिर गई, ठीक है। और कितनी गिरी वो वैल्यू? बाय -1 रुपीज, क्योंकि बोल रहा डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो 10% हो या कुछ भी हो, पहले हम फेस वैल्यू पे ही चेक करते हैं ना, अगर डिस्काउंट भी हो, डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, जो भी रेट हो तुमको हमेशा फेस वैल्यू पे चेक करना है। तो डिस्काउंट 10%, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू थी 10, 10, 10, 0, 0, तो कितना डिस्काउंट बैठा? 1 रुपीज। आ रही है बात समझ? 10% ऑफ फेस वैल्यू, 10% डिस्काउंट का रेट, और फेस वैल्यू तुम्हारी फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो डिस्काउंट का रेट कितना हुआ? ₹1। तो मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 1 रुपए। तो तुम्हारी मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 9 रुपए। आगे ये चीज समझ, आगे ये चीज समझ, क्लियर है? मैम अब क्लियर है। देखो, क्लियर है? यस। मतलब तुमको मिलने चाहिए थे 1 लाख 10 रुपए के हिसाब से, बट मार्केट वैल्यू गिर गई, तो तुमको अब 1 लाख नहीं दूंगी मैं तुम्हें कितने दूंगी? 10,000 डिबेंचर्स पे 1 रुपए लेस करके दूंगी। तो मैं तुम्हें कितने पैसे लोन दूंगी? 90,000। आई बात समझ? तो एक लॉस तो तुम्हें यहाँ हो गया। मिलने चाहिए थे डिबेंचर्स, जबकि तुम 10,000 पूरे पूरे इशू कर रहे हो एट द रेट ऑफ 10, बट उस वक्त डिबेंचर्स की वैल्यू गिर गई, तो मैंने मार्केट वैल्यू चेक करी, तो मैं उन्हीं उसी के हिसाब से तुम्हें लोन दूंगी, तुम्हें मिले 90,000। यहाँ पे तुम लॉस में चले गए 10,000 के, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हम कितना लिखेंगे, 90,000। 90,000 एट द रेट ऑफ 10, मतलब तुमको कितना मिल रहा है? 9 लाख। मैंने 10,000 लिए, कितने लिए? 10,000 एट द रेट ऑफ, ये कितना बैठा है? 1 लाख। मुझे ना 10,000 नहीं लिखने चाहिए थे फिर। अच्छा, हम 100 रुपए पे ले रहे हैं इसको, जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ ना, उसमें फेस वैल्यू 100 रुपए ले रहे हैं, पर 100 ईच। क्या ओके, हम 100 रुपए ले लेते हैं। नहीं, बट तुम्हें तो समझ आ गया ना ये, बट चलो ले लेते हैं 100 रुपए। फेस वैल्यू सपोज 100 रुपए है, तो 10% ऑफ 100 रुपए कितना बैठेगा? 10 रुपए। 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ, फेस वैल्यू थी 100 रुपए, ओके ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 100 रुपए तुम्हारी फेस वैल्यू थी, 10 रुपए तुमको डिस्काउंट हो गया, तो कितने पे पैसे मिलेंगे? 90 पे। तो यहाँ आया 90, 9 लाख, मतलब 10 लाख के बजाय तुम्हें कितने मिल रहे हैं? 9 लाख। अंडरस्टूड? 100 रुपए के हिसाब से नहीं दूंगी तुम्हें मैं, 90 रुपए के हिसाब से दूंगी, तो ये कितने बैठे तुम्हारे अकाउंट में? आएंगे 9 लाख रुपए, हाँ है एक ना? राइट। और आई शुड हैव रिटन इट 10,000 हेयर, गलती से मैंने 90,000 लिख दिया सीधा। 10,000 डिवेंचर्स तुमने इशू किए थे एट द रेट ऑफ 90 रुपए, तो कितना बैठा? 9 लाख। इधर भी 9 लाख। अंडरस्टूड? आगे ये चीज समझ। हेलो, कैन यू हियर मी पार्थ? हेलो। Yes, ma'am. Sorry, there was someone at the door again. ओके ओके, इट्स ओके। चीज समझ आया तुमको? मैं दोबारा से बता देती हूँ ये 100 रुपए जल्दी से, कि तुमको कितने पैसे मिलने चाहिए थे? तुम्हें मिलने चाहिए थे 10 लाख रुपए, ठीक है। तुम्हें 10 लाख रुपए की जरूरत थी, 10 लाख। 10 लाख की तुमको जरूरत थी, तो तुमने मुझे कितने शेयर डिवेंचर्स इशू किए? 10,000 एट द रेट ऑफ 100 रुपए, राइट। तो तुमको बाद में पता चला कि वो तो गिर गई वैल्यू 10% से, तो 10% ऑफ 100 रुपए कितना बैठा? 10 रुपए डिस्काउंट लग गया। तो तुम्हें जो मैं लोन दूंगी, वो 10,000 डिवेंचर्स पे एट द रेट ऑफ 100 नहीं दूंगी, कितना दूंगी? एट द रेट ऑफ 90। तो तुमको 10 लाख की बजाय कितने कितने का लोन मिला? 9 लाख का। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे तुम लॉस में पहले ही चले गए, उसे बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। मिलने चाहिए थे तुमको 10 लाख, डिबेंचर्स की वैल्यू गिर गई, तो मैं तुम्हें उसी हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही लोन दूंगी, तुम्हें मिले 9 लाख, मिलने चाहिए थे 10। आई होप यहाँ तक समझ आ गया है ना? अब देखो, Yes. ये डिबेंचर एप्लीकेशन तो हम यही वाला अमाउंट चेप देते हैं, बिल्कुल। मैं यही वाला नेक्स्ट एंट्री में चेप रही हूँ, 9 लाख 9 लाख, राइट। अब आता है लॉस। यहाँ पे ना लॉस के दो मतलब है।
जब इस वाले केस 5 में लॉस करते हैं ना, डिबेंचर्स इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो तुमने वही केस चेप देना यहाँ पे। लॉस का मतलब इश्यूड एट डिस्काउंट, तो देखो मैंने लिखा डी, रिडीमेबल एट प्रीमियम पी, तो मतलब यहाँ दो तरह के लॉस हो रहे हैं, डी प्लस पी। लॉस का मतलब समझ आ गया यहाँ पे केस 5 में, डी प्लस पी, दो दो अमाउंट यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो पहले हम डिबेंचर्स का बात कर लेते हैं। जब भी ये डिबेंचर वर्ड होता है ना, तब तो हम सीधा सीधा फेस वैल्यू ही लिखते हैं। कितने डिबेंचर्स थे? 10,000 एट द रेट ऑफ 100, Yes, ma'am. है ना। डिबेंचर वर्ड खाली होगा ना, वहां पे तो सीधा फेस वैल्यू ही लिखी जाती है। ये ट्रिक होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ डेबिट का अमाउंट, इधर मैं लिख रही हूँ क्रेडिट का अमाउंट। तो ये बैठा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो तुम्हारे पास यहाँ क्रेडिट में आ गए इतने 10 लाख रुपए, डेबिट में आ गया 9 लाख, राइट। अब तुमको लॉस चेक करते हैं। प्रीमियम तुम्हें कितने में बैठा है ये बोल रहा है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ओके, चेक कर लेते हैं। 5% प्रीमियम रिडीम at a premium of 5% premium on face value, on face value, right? 5% at the rate of face value, face value कितना था? 100 रुपए, राइट। 5% तो कितना बैठा? 5 रुपए, है ना। देखो, जब तुम्हारे लोन चुकता करने की बारी आई तो वो 100 रुपए से बढ़कर, जब तुमने इश्यू किया, जब तुमने मुझे डिवेंचर्स दिए, तब तो वो 100 रुपए से 90 रुपए हो गया रेट। और जब तुम्हें लोन वापस करने की बारी आई तो 100 रुपए से 5 रुपए और एडअप हो गए। तो तुम्हें अब जो मेरे को लोन देना पड़ेगा वापस, वो 100 रुपए पे नहीं देना, ना 90 रुपए पे देना, कितने पे देना? 105 रुपए पे। आई बात समझ? Yes, ma'am. तो तुम्हें जो पैसे मिलेंगे ना, मतलब तुम्हें जो पैसे रिटर्न करने हैं वो 105 के हिसाब से करने हैं। तो ये जो तुम्हारे कितने से वैल्यू बढ़ी? 5 रुपए से। देखो हमने नीचे करके देख लिया, 5% प्रीमियम कितना बैठा? 100 रुपए पे 5 रुपए। तो तुम ऐसे लिखोगे 10,000 डिबेंचर्स, प्रीमियम कितना है? 5 रुपए, तो ये लिखा 50,000। अंडरस्टूड? अब देखो Yes. तुमने जो इशू किया था वो डिस्काउंट पे किया था, और और डिस्काउंट कितना बैठा था तुम्हारा? डिस्काउंट कितना बैठा था? 10,000 पे। यहाँ पे मैं ना येलो कलर में लिख रही हूँ। यहाँ पे लॉस का मतलब दो तरह से है। जब तुमने डिस्काउंट दिया था तो तुमने दिया था 10,000 पे 10 रुपए, वो तो हो गया डिस्काउंट। और जब प्रीमियम है तो वो है 10,000 पे 5 रुपए, राइट। तो 10,000 पे 10 कितना बैठा हमारे पास? 1 लाख। और 10,000 पे 5 कितना बैठा? 50,000। तो यहाँ पे जो ये लॉस का मतलब है ना, लॉस का मतलब है 1,50,000। आगे बात समझ? Yes, समझ ma'am. आया कि एक लॉस हुआ तुम्हें डिस्काउंट इशू करते वक्त, ये हो गया तुम्हारा इशू वाला लॉस, और ये हो गया तुम्हारा रिडेम्पशन वाला लॉस, है ना। 10,000 एट द रेट ऑफ 10, 10,000 एट द रेट ऑफ 5, तो टोटल हो गया 1,50,000। समझ आ गया? बस यही डिफरेंस है केस 4 और केस 5 में। जब तुम केस 5 करते हो तो यहाँ पे लॉस के दो मीनिंग होते हैं, इसी से ही पता चल जाता है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब तुमको लोन लेना था तब तो वैल्यू गिर गई, जब तुम्हें लोन रीपे करना है तो वैल्यू बढ़ गई डिवेंचर की। तो तुम्हें दोनों तरफ से तुम्हें लॉस की सिचुएशन हो रही है ना। तो ये कॉपी करने हैं दोनों केसेस, ये स्क्रीनशॉट लेने ले लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरे दिमाग में नहीं इतना टाइम से आता कि मुझे तुम्हें ना ये वाले जरूर रिवाइज कराने, क्योंकि ये आते ही आते हैं पेपर में। मैं ये नहीं कहती कि सारे ही आएंगे केसेस, बट इनमें से कोई ना कोई जरूर आएगा, और पहले 3 केसेस तो तुमको आते ही इजी है। बस यहाँ पे ट्रिक ये चलती है कि जो खाली डिबेंचर होगा उस पर हमेशा फेस वैल्यू करनी है, राइट। Yes, ma'am. और ये ना, ये जो मैंने एग्जांपल उठाया ना, अगर तुम्हें पेज नंबर भी लिखना है तो तुम लिख सकते हो। ये जो मैंने अमाउंट्स उठाए हैं, ये उठाया है एक तो पेज नंबर 9.41 से, नो सॉरी, हाँ यस यस, 9.41 से केस 4 का जो अमाउंट उठाया है, तुम्हारी बुक से उठाया है ये अमाउंट ना मैंने। पेज नंबर 9.41, इसमें केस दे रखा है, केस 4 का एग्जांपल दे रखा है, और केस दे रखा है 9.40 पे, है ना। पेज नंबर लिख सकते हो। और फिफ्थ केस तुम्हारा दे रखा है, उसका अमाउंट जो मैंने उठाया वो है एग्जाम्पल फ्रॉम पेज नंबर 9.43। मतलब अगर तुम्हें अपना दोबारा से प्रैक्टिस करनी हो तो वहां से भी कर सकते हो, 9.41, 9.43, राइट। And now Yes. you can take screenshot and then I'll tell you the next one. Right.
Are you taking screenshot? Yes, ma'am. Could you scroll down to the third one? Yes. There is no third one, there is next case, but working note of this thing, right? Yes. Taken? Yes, ma'am. Taken. Okay, next, this much. Done for this one. Yes, ma'am. Done. और एक स्क्रीनशॉट और ले लेना इसमें ना, क्योंकि फुल फुल मार्क्स आ जाते हैं, आराम से इसमें ले सकते हो तुम मार्क्स ना। कभी कभार ये ज्यादा वेटेज में भी आ जाते हैं, कभी कभार सारे केसेस ही पूछ लेते हैं, तो आई विश कि इसमें तो पूरे पूरे ले ही लेना है ना। और क्वेश्चन में देख लेना ज्यादातर कि रिडीम की एंट्री बोलती नहीं, वैसे तो हमारे हिसाब से चार चार एंट्रीज होती है ना। ट्रांसफर एंट्री मैंने बताई थी, किसी को क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है अगर, और प्रीमियम भी है, तो हम वो लॉस का पैसा वहां सिक्योरिटी प्रीमियम से रिकवर कर लेते हैं। दैट यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द एग्जांपल, राइट। वो पेज नंबर्स में दोबारा शेयर कर दूंगी। यस, हैव यू टेकन दिस वन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड? Yes, ma'am. मतलब कुछ हिंट लगा शेयर्स का और इसका डिबेंचर्स वाले का? हेलो पार्थ, आर यू देयर? आर यू देयर? Yes, ma'am. Sorry, my house help was asking something. Who was asking? My house help. She was asking something. So I told. Oh, okay, okay, okay. It's okay. आई वाज आस्किंग कि आज जो ये वाला किया, ये कुछ कुछ समझ आया शेयर्स का और डिबेंचर्स का? हाँ, मैम समझ आ गया. है ना? क्योंकि ये ना थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो मेरे दिमाग में इतने टाइम से घूम रहा था कि इसको ना थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे टॉपिक को। आई नो तुमको रेशियोज भी करना है, बट रेशियोज का ना चिंता नहीं करनी, जो अभी तक हमने किया है ना, और आई विल चेक कि मेरे को और कोई पिक रहेगी अगर शेयर करनी तो मैं कर दूंगी। तो जो तुमने अभी तक किया ना प्रैक्टिस रेशियोज, बस वही है मेन मेन चीज। मैंने तुम्हें बता दी, ये परसेंटेज वाले ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, थोड़ा और मैं तुम्हारी बुक से ना आई सी टू दैट, अगर मेरे को 2025 की लेटेस्ट मिलती है ना एडिशन, अगर सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो आई शेयर द क्लिक्स और पेज नंबर्स, राइट।
So you Yes, can take also if means if you want to start with ratios, you can pick up some questions from the sample papers, right? And if you will be having any problem in the sample paper regarding ratios, you can ask me, right? बस मैंने तुम्हें बता दिया है, बट ज्यादातर इसी तरह के आ रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले जो हमने किए हैं, राइट? और ट्रिक तुम्हें पता ही है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना, उससे पता चल जाता है कि हमें क्या क्या निकालना है, राइट? क्योंकि फॉर्मूले से ना नंबर ऑफ आइटम्स का पता चल जाता है कि ओके दिस आइटम इज गिवन टू अस, दिस इज नॉट गिवन, सो वी विल कैलकुलेट दिस एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला, राइट? yes, ma'am. Correct. Ma'am, the screenshot is taken. डन. ओके, आई एम स्क्रॉलिंग लिटिल बिट मोर. दिस मच. Yes, done. दिस मच. समझ आ गया ना? केस 5 में ना इन्होंने बुक में तुमको अलग से डिस्काउंट लिख के दिया हुआ, तो वाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, केस 4 और केस 5 की एंट्रीज बिल्कुल सेम है ना? इशू की. तो बस तुमने एक बार केस 4 की लर्न कर ली एंट्री, तो सेम ही केस 5 की. एडजस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि केस 4 में लॉस का मतलब सिर्फ प्रीमियम और रिडेम्पशन है, और जब हम केस 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉस का मतलब डिस्काउंट प्लस प्रीमियम और रिडेम्पशन. अंडरस्टूड? I was worried about adjustment table also. Do you have any idea about the adjustment table? If you would share a pic on the group, that would be nice, better. Sorry? If you could share the picture of that adjustment table, ओके ओके. हाँ, yes, देख लेना एक बार, अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना, है ना? ठीक है. क्योंकि मेरे को ना हो रहा था कि मैं तुमको वो भी शेयर करूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट टेबल का भी ना क्वेश्चन आ ही जाता है सॉल्व करने को. दैट इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट चेक कर लेना एक बार, है ना? वो मैंने शायद किया है, हाँ हाँ. जो मैंने तुम्हारे पास लिखे हैं ना, वो पेजेस स्टार्टिंग के, जो पार्टनरशिप के मैंने तुमको दिए हैं, हाँ उसमें मैम. एडजस्टमेंट टेबल है. बट मैं एक क्लिक भी सेंड कर दूंगी, जिससे तुमको थोड़ा रिकैप्चुलेट हो जाए कि एडजस्टमेंट टेबल में किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, राइट? तो एक बार देखना और मुझे बताना कि भाई पता है तुम्हें इसके बारे में कुछ या नहीं, है ना? हाँ मैम. रेशियोज का भी मैं शेयर करूंगी. मैंने ना इतना, मेरा मतलब दिमाग खराब हो रहा है, मैंने इतने सारे पेजेस लिखे थे, बट दैट एडिशन इज नॉट मैचिंग विद योर बुक. बट आई स्टिल शेयर द पेज नंबर्स दैट आई हैड रिटन, सो ठीक. दैट यू कैन चेक. बट मैं अभी फिर से कोशिश करती हूँ, अगर मेरे को न्यू एडिशन से पेज नंबर मिल जाए ना, तो दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि तुमको भी जल्दी हेल्प हो जाएगी, है ना? मैं सर्च करूंगी, अगर मेरे को लेटेस्ट एडिशन की सॉफ्ट कॉपी मिल जाए ना, मैं फिर जल्दी जल्दी उसमें से पेज नंबर चेक करके तुमको बता दूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना? Yes. वैसे तो बस मैंने तुम्हें एक हिंट बता दिया कि जो ये परसेंटेज वाला है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दिस थिंग, जो भी तुम्हारी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो सारे इंपॉर्टेंट है. गॉट दैट? ऑल्सो मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि जो सैम्पल पेपर्स है ना, उसका पार्ट भी सॉल्व करते हैं जो सैम्पल पेपर्स में से, राइट? एक लिंक मैंने शेयर किया, उसमें तुमको वो भी मिल जाएंगे उसके आंसर्स, राइट? Ma'am. देखा था तुमने उसमें वो लिंक खोल के, उसमें साथ साथ वो सॉल्व्ड भी है. तो उसमें से भी तुम थोड़े बहुत रेशियोज के पिकअप कर लेना, है ना? और उसमें से लगे कुछ नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लेना, है ना? ठीक है. क्योंकि मैंने पूरी वो एक जिप फाइल की तरह था, बट इट वाज टेकिंग सो मच ऑफ स्पेस, सो आई शेयर्ड द लिंक डायरेक्टली, राइट? अदरवाइज तो आई वाज अबाउट टू शेयर द जिप फाइल, बट इट वाज टेकिंग सो मच स्पेस, सो आई थॉट इट्स बेटर टू शेयर द लिंक देन, राइट? क्योंकि इतना सारा स्पेस हो जाता है ना फिर पीडीएफ फाइल में. हाँ, it's okay. Yeah, that's why I have shared the link. You can go through that link. उसमें मतलब सॉल्यूशन भी दे रखा है सैम्पल पेपर का साथ साथ, तो तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा. इफ यू विल गेट स्टक एनीवेयर, यू कैन टेक हिंट फ्रॉम देयर, राइट? उससे जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा थोड़ा, है ना? Yes, ma'am. और ये वाला ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ मैम, ले लिया. अब मैं नीचे थोड़ा सा, नहीं, ये थोड़ा सा वर्किंग नोट है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट.
ओके, ये लिख लिया। हाँ मैम डन। ओके। फिर मैं रेशियोज की तुम्हें पेज नंबर दे दूंगी, है ना। और कोई जो तुम चाहते हो, ये तो मैं वॉल्यूम देनी है तुम्हें ना, पेज नंबर रिवाइज करने को। अभी के लिए अगर वो व्हाट्सएप वाला है ना तुम्हारे पास, अगर मैसेज नहीं है तो आई कैन रीशेयर इट अगेन, यू कैन टेल मी, राइट। चेक कर लेना और आज से वॉल्यूम 1 शुरू कर दो। Soon I'll share the volume 2 also with you. Okay, ratios and all. Not ratios, sorry. Shares debentures from volume 2 and volume 3, this thing. और कुछ रेशियोज में जो तुम्हें टिपिकल लग रहा है, हाँ मैम। और कुछ रेशियोज में जो तुमको टिपिकल लग रहा है, मैं एक बार चेक मतलब। करके आपको पूछ लूंगा फिर। हाँ, मतलब अभी जो किए थे हमने क्वेश्चंस, उसमें इजी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा इजी लग रहा है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा इजी है, क्योंकि यू आर अ बिगनर, और अभी तो इतनी एज भी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे कॉलेज में जाके कुछ चीजें कॉलेज में ही जाके समझ आती हैं, राइट। क्योंकि उतनी अभी उतना लेवल भी नहीं होता ना समझने का, राइट। क्योंकि एकदम से इतनी वॉल्यूम्स करना, तो आई वोंट से कि सब कुछ समझ आ गया होगा, बट थोड़ा थोड़ा तो हिंट लग गया होगा, है ना। हाँ मैम। रेशियोज में, क्योंकि रेशियोज बहुत वास्ट है, बहुत सारी है, और अलग अलग, हर क्वेश्चन अलग अलग है। तो यू कैन आस्क मी लेटर, राइट। ओके, शुड आई रैप अप देन। हाँ मैम फॉर श्योर। आज से ना वो वॉल्यूम 1 शुरू कर दो, मैं आई सून शेयर दैट पेज नंबर, ओके। ठीक है। ओके, बाय। बाय मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज से ही कर दो, है ना, फिर मेरे को बता देना, कुछ भी होगा टेक्स्ट कर देना मेरे को ग्रुप में ना। ठीक है ठीक है। ओके, बाय मैम। बाय।